all to her. Friends have started to join almost. I guess it's Sunday, so everyone's joining in late. No issues. They will start. We can start. Yes. Good morning, sir. Should I start? Yeah. Good morning. We can start. Okay. Yes. Okay. Okay. So recording on all done, right? Yes. Yes. Okay. A very good morning to one and all present here. We all know every beginning necessitates to an end, and that every ending is a prelude to something greater. And so I, Shravani Bendre, from Pune Vikasa, your host for today's session, would like to welcome you all to the grand finale. That is the 5th day of our series, Investment Ki Pathshala, hosted by Pune branch of Vikasa and jointly organized by Ahmednagar, Akola, Dhule, Goa, Jalgaon, Kolhapur, Latur, Nanded, Pimpri Chinchwad, Sangli, Satara, and Surat branches of Vikasa. We have already learned a lot about SIPs and investment techniques and strategies in our previous sessions. Our speaker for today's session, that is Mr. Bharat Lade sir, will be guiding us through the topic of basics of derivatives, futures and options, a domain which everyone is always eager to learn about, and this will also be followed by a Q&A session. Before we go ahead, I request Ms. Prajakta Akotkar, the Secretary of Akola branch of Vikasa, to present the opening remarks for today's session. Due to technical issue, I guess Prajakta won't be able to join. Yes, it was indeed a privilege that these 5 days seminar was complete brush up knowledge to all the article assistants out there, like who can start with their investment opportunities right from the beginning when they start earning the stipend. Absolutely, all the branches have tried best to spread the knowledge across the entire students community of CA fraternity, and it was really exciting to see the support of all the branches for this Investment Ki Pathshala series. Thanks to all the speakers who have already contributed very well to spread the knowledge, and without taking much time, I pass on to Shravani Bendre, MOC. Please continue. Thank you, Sairam. Okay, so we recently know that there were IPL matches, right? And I hope that everyone enjoyed watching them. So do you like cricket? All right. So IPL matches में एक चीज जो नोटिस करने जैसी थी कि इस बार का जो IPL था, the first match was between Gujarat and Chennai, and the last match was also between Gujarat and Chennai. So ठीक उसी प्रकार दोस्तों, if you see, Investment Ki Pathshala series had started with Bharat sir briefing us about the basics of investment, and it's also going to end with him addressing about the basics of derivatives. How wonderful is that? To talk about Bharat sir, well, where do I start? He is a professional trader and a technical analysis skill trainer with the experience of teaching over 300 plus students, housewives, investors, professionals, traders, and so many more. He is the founder of ABL Financial Services and has extensive knowledge of cash, currency, and commodity markets. He has over 15 years of experience in stock market extensive, 10 years of trading experience in index, stock, currency, and commodity F&O markets, and is known to offer clients with accurate and the best financial advices. He also has a good experience to analyze how the stocks are influenced by the current events and has managed about 50 crore plus AUM and 300 plus client portfolios. It is an absolute pleasure to have you here with us, sir, today. Now, as everyone is eagerly waiting for the real session to begin, without taking much time, I request Bharat sir to take over and continue with the session. Over to you, sir. thank you, Shravani, for such a wonderful introduction. Okay, so friends, we will start. Many of you heard about technical analysis, fundamental analysis, stocks, and this last segment is future and option derivatives, F&O. Friends, before we start कि derivatives, future and options काम कैसे करना है, क्या कैसे करना है, कैसे इसमें हम लोग earn कर सकते हैं, few things, हम लोगों ने एक चीज इस पे सीखना चाहिए कि पहले तो हमारा माइंडसेट इसके लिए रेडी है क्या, ठीक है.
जैसे बहुत से लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मुझे साल 2 साल 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। मुझे देखना ही नहीं है। जिस मोमेंट से वो लोग स्टॉक बाय करते हैं, 5 मिनट 10 मिनट में उसका प्राइस चेक करते हैं, कितना बढ़ा कितना नहीं हुआ, कितना नीचे गया, कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट योर साइकोलॉजी। स्टॉक इन्वेस्टमेंट में तो भी हमको साइकोलॉजी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, प्राइस ऊपर नीचे हो गया तो हमको चलेगा, बट एफ एंड ओ में ऐसे नहीं चलता है, ठीक है। हमारा माइंडसेट क्या, हमारे साइकोलॉजी क्या, कैसे वर्क करती है, हमारे लिए ये सुटेबल है कि नहीं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पर फियर और ग्रीड आपको बहुत लॉस करा सकती है। जैसे आपने सुना होगा, बहुत सी बार ये सुनने में आता है कि इसका इतना लॉस हो गया, उसका वो प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, उसने पूरा पैसा गमा दिया, तो जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रीडीनेस, ठीक है। एफ एंड ओ में ग्रीडीनेस विल नॉट वर्क। एफ एंड ओ का आपका माइंडसेट सेट चाहिए कि आपको कितना अर्निंग्स होना चाहिए। अगर कोई सोचेगा कि मैं एफ एंड ओ में रातों रात पैसा बना लूंगा, आपने कहीं पे सुना होगा कि इसने 2 लाख बना लिया, उसने 4 लाख बना लिया, उसने 50 लाख बना लिया, उसने ये कर लिया, ठीक है। ये सारी कही सुनी बातें होती है, इस पे हम लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं आपको है ना पहले कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा, ठीक है, एफ एंड ओ के, उसके बाद हम लोग इसका पूरा स्टडी करते हैं, ठीक है। सेबी का एक डेटा आया है 3 महीने पहले, बिफोर कोरोना एफ एंड ओ, प्योर एफ एंड ओ में रिटेलर का जो पार्टिसिपेशन था वो 5 लाख या 5.5 लाख तक का था। उसमें से 95% ऑफ द पब्लिक रिटेलर जो था वो लॉस करता था और सिर्फ 5% पब्लिक पैसा बनाता था। लास्ट जो उनका सर्वे हुआ, वो सर्वे में 3 महीने पहले उन्होंने चेक किया कि जो नंबर 5 लाख 5.5 लाख था बिफोर कोरोना, आफ्टर कोरोना वो नंबर गया 47 lakhs टू 50 lakhs तक। रिटेलर जो एफ एंड ओ में काम करता है, प्योर एफ एंड ओ, उसका इन्वेस्टमेंट या स्टॉक्स का नहीं, सिर्फ एफ एंड ओ का, ठीक है। और जो रिटेलर का जो पैसा बनाते हैं वो रेशियो भी 5% से बढ़ के 11% हुआ। सी ये जो लास्ट 30 years में नहीं हुआ, वो लास्ट 3 years में कैसे हो गया। तो जो यंगस्टर्स है, आप जैसे यंगस्टर्स, हाउसवाइफ, खासकर लेडीज, ठीक है, ये लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें काम करने लग गए और ये विदाउट लर्निंग इसमें एंटर नहीं करते हैं। अगर आप पुराने टाइम एक जनरेशन पीछे, आपके पेरेंट्स, चाचा मामा और कोई हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, ठीक है, वो लोग किसी के कहने पे ज्यादा काम करते थे। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग हर बार उनको कुछ समझ नहीं था, बट मैक्सिमम सिनेरियो ये था कि किसी ने कह दिया कि ये ले लो, वो ले लिया, ये बेच दो, वो बेच दिया, इसका ऐसे हो गया, उसका ये हो गया। जस्ट कही सुनी बातें, यानी कि जस्ट किसी ने बोला तो ले लिया। बट ये जो जनरेशन है, जो आपकी जनरेशन है, वो काफी ज्यादा एफ में काम करती है, बट वो सीखती है बाद में काम करती है, ठीक है। सो ये नंबर्स बोल रहे हैं, ये कोई आप जाके गूगल कर सकते हो, 3-4 महीने पहले ही सेबी का डेटा आया है, ठीक है। सो ये ड्रेस्टिक चेंज है। अब मैं आपको एफ एंड ओ और स्टॉक मार्केट का जो कंट्रीब्यूशन है कि कितना इन्वेस्टमेंट होता है, अगर दिन का स्टॉक्स बाइंग एंड सेलिंग अगर 1 लाख करोड़ का होता है, तो एफ एंड ओ में काम 10 लाख करोड़ का होता है। 10 times मोर बिगर मार्केट है ये, ठीक है। इट्स अ प्योर जीरो सम गेम। जीरो सम गेम मतलब एग्जैक्टली जितना लॉस होगा उतना ही दूसरे को एग्जैक्टली प्रॉफिट होगा। मतलब जो 89, मैं रिटेलर की बात कर रहा हूँ, इसमें कोई इंस्टीट्यूशनल एफ आई आई डी आई आई इन लोगों के बारे में नहीं बात कर रहे हम लोग। जितना, वो तो पूरा अलग एंटिटी हो गया, ठीक है। जितना 89% ऑफ द पीपल लॉस करेगी, उतना ही प्रॉफिट 11% के लोग करेंगे। अब आपको माइंडसेट ये बनाना है कि आपको अगर इसमें काम करना है तो आपको 89% में जाना है या 11% में जाना है, ठीक है। अगर 11% में जाना है तो एक चीज ध्यान में रखो, आपको ये सीखना पड़ेगा, आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप इसमें अच्छे से काम कर सकते हो। माइंडसेट क्या बनाना है कि हमको इसमें बहुत ज़्यादा ग्रीडीनेस और फियर दोनों भी नहीं चाहिए। ग्रीडीनेस ऐसे, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है मेरे इतने साल के करियर में कि लोगों को ओवरनाइट पैसा बनाना होता है। दिस इज नॉट द टूल कि आप ओवरनाइट पैसा बना सकोगे। सेकंड चीज, आप एफ एंड ओ के बारे में बात करोगे, आप किसी से भी पूछ लो, 90% ऑफ द पब्लिक यही बोलेगा कि ये सट्टा है, इट्स रिस्की।
जिसको लगता है कि ये सट्टा है वो 100% इसमें लॉस ही करेगा। इट्स नॉट अ सट्टा, इट्स अ प्योर मैथ्स। बिलीव मी, मैं आपको जैसे जैसे आगे लेके जाऊंगा मैं ये बता दूंगा कि ये कंप्लीट मैथ्स है। मैथ्स भी कौन सा, थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स का प्योर अलजेब्रा। ठीक है। सेकंड ये है प्रोबेबिलिटी गेम। प्रोबेबिलिटी परसेंटेज उसके लिए ज्यादा है जिसको टेक्निकल एनालिसिस नहीं पता है। जो टेक्निकल एनालिसिस जिसको समझ में आ रहा है उसके लिए प्रोबेबिलिटी गेम भी कम हो जाता है परसेंटेज। ठीक है। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ अलजेब्रा, मैथमेटिक्स प्लस प्रोबेबिलिटी प्लस आपको ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस। ट्रेंड में 4 टाइप्स होते हैं जैसे कि बुलिश ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड है, ठीक है, आपका साइडवेज होता है, और एक बहुत वोलेटिलिटी होता है। मतलब सपोज निफ्टी 500 पॉइंट्स ऊपर चला गया, 500 पॉइंट्स नीचे आ गया, और एट द एंड मंथ एंड के आखिरी में वो वहीं पर था जहाँ पे मंथ के स्टार्ट में था। ठीक है, वो हो गया बहुत हाईली वोलेटाइल। ठीक है। सो ये 4 सिनारियो रहते हैं फ्रेंड्स। तो इससे ज़्यादा, इससे बाहर कुछ नहीं होता है। ठीक है। सो ये अगर आप सीखते हो, हम लोग धीरे धीरे जाएंगे तो रियलिस्टिक गोल्स कैसे बनते जाते हैं वो हमको फाइंड आउट करना चाहिए। ठीक है। तो इस अगर ऐसे आप करते हो तो आपको F&O में काम करने में मज़ा भी आएगा और आपको लॉसेस बहुत कम होंगे कंपेयर टू प्रॉफिट। ठीक है। सेकंड थिंग कि रियलिस्टिक, मैंने अभी तक 3-4 बार यूज किया कि रियलिस्टिक गोल होना चाहिए, रियलिस्टिक गोल होना चाहिए, रियलिस्टिक गोल होना। तो क्या होना चाहिए रियलिस्टिक गोल? रियलिस्टिक गोल ऐसे होना चाहिए कि जो भी कैपिटल आप डिप्लॉय करते हो वो कैपिटल का मंथली अगर आपको 1.5 से 2% रिटर्न्स मिल रहा है तो वो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है। इट्स अ सक्सेसफुल ट्रेडर उसको बोलते हैं। वो 2% मंथली लाने के लिए भी आपको बहुत सी चीज़ें सीखनी पड़ती है। इट्स नॉट सो इजी। ठीक है। लोग, आप में से काफ़ी लोग काम करते होंगे, मुझे आई बिलीव कि आप लोगों में से बहुत से लोग F&O में काम करते होंगे, बट जो सिर्फ सिंगल साइड काम करते हैं उनको, उनका बैलेंस शीट ऐसे बनता है कि 2 बार प्रॉफिट हुआ, 1 बार लॉस हुआ, तीसरी बार प्रॉफिट हुआ, चौथी बार लॉस हुआ, और 5वीं बार में जितना कमाया था वो तो गया ही गया, कैपिटल में से भी कुछ पोर्शन लॉस हो गया। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। मैंने ये सब इसलिए बोला कि आप लोग पहले माइंडसेट F&O के लिए प्रिपेयर्ड होना बहुत ज़रूरी है कि क्या है इसमें, क्या होता है, ये अगर हमें पता है तो हम उसमें आगे से अच्छे से काम कर सकते हैं, तो हम सीख सकते हैं, तो हम उसको उस एंगल से देखते हैं कि इसमें क्या है, रियलिस्टिक गोल कैसे होता है, अगर ये है तो ही इसमें काम होगा। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है। तो डेरिवेटिव, डेरिवेटिव आर इंस्ट्रूमेंट्स दैट डू नॉट हैव अ वैल्यू ऑफ देयर ओन। मतलब ये किसी अंडरलाइन असेट पे वर्क करता है बट इसका खुद का कोई वैल्यू नहीं होता है। जैसे हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये जो इंडेक्स हो गए, फिन निफ्टी इंडेक्स हो गया, कुछ स्टॉक्स हो गए, करेंसी हो गया, ठीक है, इस पे हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस के पे काम करते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस किस पे डिपेंड होता है? वो अंडरलाइन असेट पे पर्टिकुलर। ठीक है। दे आर लाइक अ बेट ऑन द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग इंस्ट्रूमेंट। एग्जिस्टिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब अंडरलाइन एसेट जो मैंने यहाँ पे बोला, लाइक स्टॉक्स एंड इंडेक्स। ठीक है। तो उसमें जो बेट लेते हैं, बेट मतलब कि हम लोग जो उसमें ट्रेडिंग करते हैं, जैसे हमने निफ्टी का फ्यूचर ले लिया, या फिर निफ्टी में हम ऑप्शंस में काम करते हैं, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, स्टॉक्स हो गए, करेंसी हो गया, यूएसडी आईएनआर में जैसे मैं बहुत काम करता हूँ, तो दैट इज कॉल्ड अ डेरिवेटिव। ठीक है। अब डेरिवेटिव में आते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक है। इस फ्यूचर एंड ऑप्शन मतलब क्या होता है? इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सेलर एंड बायर। ठीक है। जहां पर वो लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं फॉर एन अंडरलाइन एसेट, कोई एक अंडरलाइन एसेट पे पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। ठीक है। जिसे हम एक्सपायरी बोलते हैं हमारे ट्रेडिंग लैंग्वेज में। ठीक है। कि मंथली एक्सपायरी, इंडेक्स के अगर ऑप्शंस का काम करेंगे तो वीकली एक्सपायरी। सो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं फॉर एन अंडरलाइन एसेट, जिसपे हमें काम करना होता है वो पर्टिकुलर अंडरलाइन एसेट के बीच में, जहां सेलर एंड बायर दोनों ऑब्लिक्ट होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। ठीक है। सेलर ने पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट सेल किया, बायर ने पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट बाय किया। ठीक है। F&O का दोनों का अंडरस्टैंडिंग ये है, दोनों का अपना अपना एनालिसिस है। एक को लग रहा है कि यहाँ से
मार्केट बेरिश होगा, एक को लग रहा है बुलिश होगा, और वो अंडरस्टैंडिंग से दोनों सेल और बाय करते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई If anybody has any doubt, they can feel free to raise their hands and directly ask it to sir, or you can put it in the chat box. Over to you, sir. ठीक है, थैंक यू। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज वेयर द बायर एंड सेलर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू ट्रांजैक्ट इन द अंडरलाइन एसेट ऑन अ फ्यूचर डेट एट अ प्राइस डिटरमाइंड इन एडवांस। सेम थिंग मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्यूचर्स, एक फाइनेंशियल फ्यूचर, दूसरा फिजिकल फ्यूचर्स हो गया है। बट अभी जो स्टॉक्स फ्यूचर्स आ गए हैं, सो मेनी स्टॉक फ्यूचर्स आर इन फिजिकल फ्यूचर्स, उनका भी सेटलमेंट अगर आपने स्क्वेयर ऑफ नहीं किया पोजीशन तो फिजिकल सेटलमेंट होता है। फिजिकल सेटलमेंट होता है मतलब क्या, अगर आपने सपोज टाटा मोटर्स का फ्यूचर सेल किया है और आपने आपका पोजीशन स्क्वेयर ऑफ नहीं किया, तो आपको फिजिकल सेटलमेंट मतलब आपको जितना नंबर ऑफ क्वांटिटी है वो आपको सामने देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको पेनल्टी लग सकती है। ठीक है, तो अभी कुछ कुछ स्टॉक्स में भी फिजिकल सेटलमेंट आ गया है। इंडेक्स में फिजिकल सेटलमेंट नहीं है, बट सेबी का रूल है कि आपको वो स्क्वेयर ऑफ करना ही होता है, अदरवाइज आपको पेनल्टी लग सकती है। ठीक है, Sir, someone's asking, अगर square off नहीं किया तो? पेनल्टी लगेगा। Okay, and automatic square off भी होता है क्या? ऑटोमेटिक स्क्वेयर ऑफ आपका ब्रोकर कर देगा। ठीक है, बट अगर स्क्वेयर ऑफ नहीं हुआ, ब्रोकर उसको आफ्टर मार्केट लेके जाता है कभी कभी। ठीक है, ये सब इप्स एंड बट्स है कि आपका ब्रोकर क्या करता है क्या नहीं करता है, वो बहुत सी चीजें होती है। सामने अगर आपका बाइंग पोजीशन है और सामने सेलर नहीं खड़ा है, ठीक है, तो वो जाता है ऑक्शन में। ऑक्शन में ऑलवेज सामने वाले को फायदा होता है, हमें फायदा नहीं होता है। इफ वी आर बायर तो हमको बहुत महंगे रेट में मिलेगा, अगर स्क्वेयर ऑफ करते थे तो सस्ते रेट में मिल जाता। इफ वी आर सेलर तो बहुत सस्ते रेट में सेल हो जाएगा, जबकि वो महंगा होना चाहिए। तो ऑक्शन में Okay. जाता है, ऑक्शन में जाने के बाद आपको फिजिकल क्वांटिटी कुछ कुछ स्टॉक्स में भी आजकल, जैसे मैंने बोला कि कुछ कुछ स्टॉक्स में भी सेबी ने कंपलसरी किया है, Yes, yes, आपको yes. फिजिकल सेटलमेंट करना पड़ता है। अगर नहीं हो सका, आपके पास वो सपोज आपके पास स्टॉक्स नहीं है, जैसे सपोज रिलायंस का है 250 का क्वांटिटी, आपके पास रिलायंस 250 क्वांटिटी नहीं है, तो आपको फिर वो पेनल्टी चार्ज होता है। Okay, sir. So there's another question who's there's another person who's asking, is the price fixed in futures? फिक्स कैसे रहेगा, मूविंग रहेगा ना। मैं क्वेश्चन नहीं Yeah. समझा इसका क्या है मतलब, क्योंकि No, he's just asked, is it fixed or not? नो फिक्स नहीं होता है, क्योंकि प्राइस फिक्स होगा तो फिर ट्रेड कैसे होगा। Yeah, correct. ट्रेडिंग के लिए तो प्राइस मूवमेंट चाहिए ना, अप्स एंड डाउन। Correct, sir. Yes. ठीक है, ओके, सो विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Okay. Sir. ठीक है, ऑप्शन सेम ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर agree to transact in the underlying asset on a future date at a predetermined price। predetermined price मतलब इसका यहाँ पे मीनिंग क्या होता है, सपोज मैंने निफ्टी का एक कॉल या पुट बाय किया, ठीक है, तो बाय करने, जब मैं बाय करता हूँ या सेल करता हूँ तो मुझे उसका प्राइस पता होता है। ठीक है, तो वो प्राइस पर मैं उस पर ट्रांजेक्शन करता हूँ, दैट इज कॉल्ड अ प्रीडिटरमाइंड प्राइस। ठीक है, हाउएवर हियर द ऑप्शन बायर हैज द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। राइट मतलब क्या, कि ऑप्शन बायर के पास जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा, ठीक है, उसका उसके पास राइट है, बट ऑब्लिगेशन क्या है कि वो उतना क्वांटिटी फिजिकल सेटलमेंट के लिए जाएगा, वो ऑब्लिगेट नहीं है, मतलब उसको देना पड़ेगा या बाय करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सपायरी डेट पे। ओके, फ्यूचर और ऑप्शंस का डिफरेंस समझ में आया। यहाँ पर फिजिकल सेटलमेंट का ऑब्लिगेशन आप पर नहीं है। अगर आपने निफ्टी का कुछ 18,500 का कॉल सेल किया है तो आपको 50 क्वांटिटी निफ्टी देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्ट तीन स्ट्राइक प्राइस तक के कॉन्ट्रैक्ट आप ओपन छोड़ सकते हो ऑप्शन में। ठीक है, आगे देखते हैं क्या टाइप्स ऑफ ऑप्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्शन, वन इज फॉर पुट ऑप्शन। सी यहाँ पे है ना, बहुत से लोग
आपने कहीं सीखा होगा, यूट्यूब देखा होगा, तो कॉल मतलब बाइंग, कॉल मतलब बुलिश ऑप्शन बोलते हैं और पुट मतलब बेरिश ऑप्शन बोलते हैं। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दोनों ऑप्शन को हम लोग बाइंग और सॉरी बुलिश और बेरिश में इसमें यूज कर सकते हैं। कॉल को भी बुलिश और बेरिश यूज कर सकते हैं, पुट को भी बुलिश और बेरिश यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कॉल ऑप्शन गिव्स द बायर होल्डर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ अंडरलाइन एसेट। सेम थिंग मैंने यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पे आप इस पे प्रॉफिट एंड लॉस बुक कर सकते हो, बट एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटी का सेटलमेंट आपको करना नहीं होता है ऑप्शन में, जस्ट लाइक अ फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर में आप वो ऑब्लिग होते हो कि आपको वो देना या खरीदना पड़ेगा, बाइंग एंड सेलिंग जैसे भी आपने किया होगा, ठीक है। पुट ऑप्शन में क्या है, पुट ऑप्शन गिव्स द बायर और होल्डर से द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू सेल स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ अंडरलाइन एसेट, ठीक है। सो ऑप्शन में हमको दो टाइप मिल गया, एक कॉल ऑप्शन, दूसरा पुट ऑप्शन, ठीक है। हम लोग कॉल ऑप्शन से अगर बुलिश मार्केट है, हमको लग रहा है कि यहाँ से अंडरलाइन एसेट का वैल्यू ऊपर जाएगा, तो हम लोग कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। अगर हमको लग रहा है कि यहाँ से अंडरलाइन एसेट, हम अंडरलाइन एसेट के यहाँ पे निफ्टी कंसिडर करते हैं, निफ्टी का प्राइस निफ्टी नीचे जाएगा तो हम कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम ऊपर जाने के लिए अगर कॉल यूज कर सकते हैं, नीचे जाने के लिए भी अगर कॉल यूज कर सकते हैं, तो फिर पुट की मतलब सेकंड अनदर ऑप्शन की जरूरत क्या थी। एक में ही दोनों का काम हो सकता था, अगर ऊपर जा रहा है तो बाय कर लो, नीचे जा रहा है तो सेल कर लो, जस्ट लाइक अ फ्यूचर और स्टॉक आप जैसे करते हो वैसा, ठीक है। तो यहाँ पर अदर ऑप्शन मतलब कॉल एंड पुट, दो ऑप्शन की जरूरत क्यों थी। अच्छा, दोनों हम लोग बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। द रीजन बिहाइंड इज कि ऑप्शन जो था वो बेसिक पर्पज ऑफ ऑप्शन इज हेजिंग, ठीक है, आपको हेज करने के लिए। अब हेजिंग का मतलब क्या है, एक मैं एकदम सिंपल एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर आपका पोर्टफोलियो है 50 लाख, 1 करोड़, 10 लाख, जो भी कुछ है, ठीक है। अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख 50 लाख का है, आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट 10% का करेक्शन हो सकता है, ठीक है। बट आपको आपका पोर्टफोलियो सेल नहीं करना है, आपको उसमें से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि आपको पता है ये टाइम बिंग करेक्शन आने वाला है, उसके बाद मार्केट वापस से ऊपर जाएगा, तो मैं क्यों सेल करके मेरा पोर्टफोलियो खाली कर दूँ, ठीक है। दैट टाइम यू कैन टेक कॉन्ट्रा ट्रेड और हेज, आपका पोर्टफोलियो आप हेज कर सकते हो। कैसे, अगर 10% मार्केट नीचे आने वाला है तो मैं ऑप्शंस बाय करके रखूंगा, कंसिडरिंग कि 10% में मुझे अगर 1 लाख का लॉस होने वाला है, तो मुझे ऑप्शंस बाय करके 1 लाख तक का प्रॉफिट होना चाहिए, या ऑप्शन सेल करके 1 लाख तक का प्रॉफिट होना चाहिए। इस सिनारियो से मैं उसको हेज करके रखूंगा। उसके लिए मुझे कुछ फीस देनी पड़ेगी 1 से 1.5% आपके पोर्टफोलियो का आपको ऑप्शन में बाइंग और सेलिंग पे खर्चा करना पड़ेगा, ताकि आपको 10% का प्रॉफिट हो सके, ठीक है। आपके पोर्टफोलियो में जितना पोर्टफोलियो नीचे ड्रॉ डाउन होने वाला रहेगा, उतना आपको हेज करके रखना पड़ता है, ठीक है। दिस इज द हेजिंग, दिस इज द So actually the voice is lagging a little सॉरी। and your voice is not clear. Can you just like maybe hold the mic closer? अभी आ रहा है क्लियर आवाज? Yes, sir. Yes, perfect. ठीक है, ओके, Yes, sir. Thank you. या सो दिस इज द हेजिंग, ठीक है, बेसिक पर्पज ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टाइम जाते गया, लोगों को समझ में आने लग गया कि ये सिर्फ हेजिंग नहीं है, इसको हम लोग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि कम पैसे में हम लोग अच्छा खासा बेट ले सकते हैं, ट्रेडिंग बेट, ठीक है। सो इसको ट्रेडिंग करना शुरू हुआ, और इसका ट्रेडिंग इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इट्स अ 10 टाइम बिगर देन द कैश मार्केट, देन द स्टॉक मार्केट, मतलब स्टॉक्स का जो ट्रेडिंग होता है उससे, ठीक है। सो डेरिवेटिव मार्केट मोर ग्रो हुआ, ठीक है। सो यहाँ तक ये ऑप्शन का बेसिक्स है, या ऑप्शंस की थ्योरी है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी, कुछ क्वेश्चंस, या हम क्वेश्चन एंड आंसर बाद में आखिरी में फाइनल करने वाले, तो तभी करें, तो मैं कंटिन्यू करूँ, इज इट फाइन? Yes, sir. तो एक काम करते हैं, हम लास्ट में क्वेरीज रखते हैं।
So someone has just asked, can you please explain hedging again, and then you can proceed, sir. ठीक है, ओके, ठीक है। तो हम लोग हेजिंग करते हैं, वापस से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सी हेजिंग मतलब क्या होता है, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर आपका पोर्टफोलियो है 50 लाख का, 10 लाख का, 1 करोड़ का, जो भी कुछ है, और आपको लग रहा है कि इन अ नियर फ्यूचर मार्केट करेक्ट हो सकता है, मार्केट में करेक्शन आ सकता है, तो मार्केट और एक्सपेक्टेड है कि मार्केट 10% करेक्शन होगा, राइट। अगर आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है, 10% करेक्शन अगर मैं मार्केट के सिनारियो से पकड़ता हूँ, निफ्टी के हिसाब से, तो आपका पोर्टफोलियो भी 1 लाख तक नीचे आ सकता है, ठीक है। अब आपको पता है कि आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं जो आगे जाके आपको अच्छा रिटर्न देंगे। जो भी करेक्शन है वो टेम्पररी है, ठीक है। टाइम बीइंग के लिए, थोड़ा टाइम के लिए करेक्शन आएगा और फिर से मार्केट ऊपर जाएगा। तो आप आपका पोर्टफोलियो खाली करना नहीं चाहते हो, मतलब बेचना नहीं चाहते हो, बट जो आपका ड्रॉ डाउन आने वाला है 10% का, उसको आपको प्रोटेक्ट करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप ऑप्शंस में बेट, कॉन्ट्रा बेट लेके रखोगे, ठीक है। अगर मार्केट करेक्ट होता है, मार्केट नीचे आता है 10%, तो ऑप्शंस में आपको फ़ायदा होगा। जो आपका ड्रॉ डाउन हो रहा है वो कैलकुलेशंस होते हैं पूरे, ठीक है। तो जो भी जितना भी मार्केट का ड्रॉ डाउन होगा उतना आपको ऑप्शंस में फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो आप नो प्रॉफिट नो गेन में रहोगे, ठीक है। मतलब आपका पोर्टफोलियो नीचे आएगा लेकिन ऑप्शंस में आपको फ़ायदा हो जाएगा। अब अगर मुझे ऑप्शन बाय या सेल करना है तो मुझे कुछ पैसा लगेगा, तो उसका इस तरह से हिसाब होता है कि जो मेरा पोर्टफोलियो है उसके 1.5 से 2% तक का मुझे चार्ज लगना चाहिए, ठीक है, फॉर द हेजिंग बेट और कॉन्ट्रा ट्रेड, ठीक है। सो मैं 1 या 1.5% चार्ज देके, ऑप्शन बाइंग का प्राइस देके, मैं मेरा 10% का जो पोर्टफोलियो ड्रॉ डाउन हो रहा है उसको मैं कवर कर लेता हूँ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हेजिंग, ठीक है। अब ये मैंने आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दिया, ठीक है। अब जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो स्मार्ट मनी होता है या जो बड़े कंपनीज होती है, वो लोग सिर्फ स्टॉक्स का हेजिंग इंडेक्स के साथ करते नहीं है, वो क्रॉस सेगमेंट हेजिंग भी करते हैं। तो डॉलर का हेजिंग गोल्ड के साथ में, क्रूड के साथ में, स्टॉक्स के फ्यूचर्स के साथ में, इंडेक्स के, ऐसे उनका अक्रॉस अ सेगमेंट हेजिंग होता है। सो इट्स अ वेरी बिग एंड लार्ज कॉन्सेप्ट। तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। विद इन द सेगमेंट भी हेजिंग होता है। सो फार्मा के अगेंस्ट किसी और को करेंगे, बैंक को करेंगे। तो इस तरह से जैसे मार्केट शो करता है कि एक सेगमेंट ऊपर जा रहा है, दूसरा नीचे जा रहा है, तो कॉन्ट्रा बेट लेते हैं और पोर्टफोलियो और जो भी आपके ऑप्शंस बेट होते हैं, जो ऑप्शंस ट्रेड होते हैं, उसको हेज करते हैं, ठीक है। हम लोग, मैं आपको जो सिखाऊंगा आगे जाके कि ऑप्शंस को ही स्ट्रैटेजी में आप कैसे हेज करके काम कर सकते हो, ठीक है। क्लियर? Yes, sir. There is only one doubt, one more doubt. 1 second. How to know the drawdowns or corrections in the market? वो अभी आप तो आपका टेक्निकल के क्लासेस हुआ है ना, उसी से हिसाब से हम लोगों को फाइंड आउट करता है। एक्चुअली क्या होता है, आप आपका जब चार्ट चेक करते हो तो आपको ध्यान में आता है कि कहाँ से मार्केट कितना नीचे आएगा, उसका नीचे में, जैसे अगर आपने पहला मेरा सेशन ये किया होगा तो मैंने डिमांड एंड सप्लाई जोन बताया था। तो हमको ये देखना होता है कि अगर यहाँ से सप्लाई आता है, यानी कि सेलिंग आती है, यानी कि बेरिश व्यू बनता है, तो पहला सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट कहाँ तक है, ठीक है। नीचे कहाँ पे सपोर्ट आएगा, मतलब डिमांड जोन कहाँ पे है, तो वहाँ तक का करेक्शन आ सकता है। ये हमारा प्राइमरी एनालिसिस होता है, ठीक है। सो वहाँ पर अगर वो सपोर्ट लेता है तो उस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि ये कितना परसेंट ड्रॉ डाउन आ सकता है, कितना परसेंट मार्केट नीचे आ सकता है, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन होते हैं, ठीक है। तो वो टेक्निकल एनालिसिस सीखना ज़रूरी है कि कहाँ पर जोन्स कहाँ पर बनते हैं, ठीक है। तो मैंने ट्राई किया था मेरे फर्स्ट लेक्चर में आपको जोन्स वगैरह बताने के लिए कि डिमांड जोन, सप्लाई जोन, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बाकी इंडिकेटर्स वगैरह जो होते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, मैं भी जो सिखाता हूँ, ठीक है, वो लैगिंग होते हैं। सो पहले प्राइस एक्शन वर्क करती है। प्राइस एक्शन अगर अपसाइड है तो आपको सारे इंडिकेटर अपसाइड दिखाएंगे,
बुलिश दिखाएंगे, डाउन साइड है तो सारे इंडिकेटर बेरिश दिखाएंगे। सो प्राइस एक्शन फर्स्ट परफॉर्म होता है, देन इंडिकेटर होता है। सारे इंडिकेटर्स, कोई इंडिकेटर लीडिंग नहीं है एक्सेप्ट डिमांड एंड सप्लाई जोन, बाकी सब कुछ लैगिंग है। कोई आपको पहले नहीं बता सकता है कि क्या होने वाला है मार्केट में, ठीक है, कि रेड कैंडल फॉर्म होगी या ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी। सो वो सिर्फ आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन ही बता सकते हैं। तो वो हिसाब से ही आपको फिर कितना परसेंट ड्रॉ डाउन होगा, फिर उस हिसाब से आपको कितना ऑप्शन बाय करना है एंड ऑल दिस थिंग्स है, वो सब थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, तो वो उसको टाइम लगेगा। तो हम लोग आगे मूव करते हैं क्योंकि आगे बहुत कुछ है, अभी तो हम एकदम बेसिक्स पे ही हैं। Yes, sir. ठीक है, अब ये है पे ऑफ चार्ट्स। पे ऑफ चार्ट्स बिटवीन फ्यूचर एंड ऑप्शन कि कैसे होता है। सी, फ्यूचर जो होता है उसका डेल्टा वन होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि आपका अंडरलाइन एसेट कितना मूवमेंट दे रहा है, उसका ब्रेक इवन पॉइंट भी जीरो ही होता है। ठीक है, कि अगर वो उसके बाइंग प्राइस से अगर एक पॉइंट भी ऊपर गया तो आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, डायरेक्ट डेल्टा वन हो जाएगा उसका, तो वो सेम प्रॉफिट देगा। अगर -1 हो गया, आपने सपोज 100 रुपए पे कोई चीज खरीदी, 99 हो गई, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आपको लॉस देना शुरू कर देगा। ठीक है, इसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस होता है फ्यूचर में। ऑप्शन में क्या होता है, आप ऑप्शन बाय करते हो कुछ अमाउंट देके, ठीक है, वो जो अमाउंट है वो आपका ऐड करता है ब्रेक इवन पॉइंट को। कैसे ऐड करता है, अगर मैंने 18,550 का निफ्टी का कॉल बाय किया है, अगर मैं 96 रुपीज पे बाय करता हूँ या 100 रुपीज पकड़ता हूँ राउंड फिगर, तो मेरा ब्रेक इवन मतलब मुझे प्रॉफिट कहाँ से होगा, 18,650 के आगे से। सी, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है मेरा प्राइस जो मैंने ऑप्शन के लिए पे किया था। ठीक है, इसके बाद में मुझे प्रॉफिट स्टार्ट होगा। फ्यूचर में ऐसा नहीं है, अगर 18,550 चल रहा है रेट, मैंने बाय किया है, तो सेम 18,551 से 551 से मुझे प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो अमाउंट है ये मुझे ब्रेक इवन अमाउंट बढ़ जाती है जो मैंने पे किया है ऑप्शन बाय करने के लिए। ठीक है, लेकिन जैसे कि इसमें लॉस भी अनलिमिटेड है, इसमें लॉस लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब कितना, जो प्राइस मैंने ऑप्शन बाय करने के लिए दिया था, एग्जांपल में मैंने आपको 100 रुपीज बोला था, तो मेरा मैक्सिमम लॉस 100 रुपीज का ही होगा। यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस होगा। ठीक है, यहाँ पर लिमिटेड लॉस है, प्रॉफिट अनलिमिटेड आफ्टर अ पर्टिकुलर ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, सेम लाइक अ फ्यूचर के जैसा। सो ये मेजर डिफरेंस है फ्यूचर एंड ऑप्शन में। ठीक है, सो मैंने ट्राई किया है कि आपको इजी वे में जितना समझा सकूं। इसमें बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इसका जो सार है छोटा, वो इस तरह से आता है कि आपको कैसे पे ऑफ चार्ट मिलेगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, आगे लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब ये जो है ना, मार्केट में सबसे बड़ी दो ही कम्युनिटी है ट्रेडर कम्युनिटी में, एक ऑप्शन ट्रेडर्स में, एक है ऑप्शन बायर्स, दूसरे है ऑप्शन सेलर्स। ठीक है, ये ऑलवेज फाइट करते रहते हैं। ठीक है, कोई कहता है कि ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है, कोई बोलता है ऑप्शन सेलर्स में पैसा बनता है। ठीक है, और अगर ये दोनों अवेलेबल नहीं रहेंगे तो ट्रेड्स नहीं बन सकते। मतलब अगर आपको कोई ऑप्शन सेल करना है तो सामने बायर चाहिए, अगर बाय करना है तो सेलर चाहिए। अगर दोनों नहीं अवेलेबल है तो ट्रेड नहीं होगा। ठीक है, सो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है फॉर अ ट्रेड। अब इसमें कौन किसकी प्रोबेबिलिटी हाइयर है, किसकी प्रोबेबिलिटी कम है, वो हम आगे देखते हैं कि बायर पैसा बना सकता है कि सेलर पैसा बना सकता है, किसका कितना रिस्क है, किसको कितना प्रॉफिट हो सकता है, किसको कितना लॉस हो सकता है, चांसेस एंड ऑल दिस थिंग्स we will see ahead. ठीक है, सी, ऑप्शन बायर वर्सेस ऑप्शन सेलर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ऑप्शन बायर का जो है उसको जितना प्रीमियम है उतना ही उसको मार्जिन लगेगा, मतलब उतना ही पैसा लगेगा। मतलब अगर आप 100 रुपए का ऑप्शन बाय कर रहे हो तो आपको 100 रुपया ही लगेगा। ठीक है, लेकिन सेम ऑप्शन अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में मार्जिन लगेगा। ठीक है, ऑप्शन बायर का जो रिस्क है वो लिमिटेड रिस्क है, मतलब कितना, 100 रुपीज मैक्सिमम। वो लॉस कितना करेगा, अगर आपने कोई
कोई भी चीज़ खरीदी है, सपोज आपने एक पेन बाय किया है, आपका पेन टूट गया, लॉस हो गया, वो गिर गया, कहीं पे गुम हो गया, तो आपको लॉस कितना होगा? जितना वो पेन का प्राइस होगा, सेम जितना ऑप्शन बायर ने जो बाइंग प्राइस है उसके ऑप्शन का, वही उसका लॉस है, ठीक है। बट ऑप्शन सेलर का जो लॉस या जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो उसके अगेंस्ट है, अनलिमिटेड लॉस उसको हो सकता है, ठीक है। अगर आपको कोई पेन अगर आप सेल करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आपने अगर उसको सेल कर दिया, पहले आपने अगर 100 रुपये में वो पेन सेल कर दिया, अब आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? 100 रुपीज़ ही हो सकता है, ठीक है। वो पेन आप अगर खरीदने जाओगे, आपने बेचा है तो आपको खरीदना भी पड़ेगा कंपनी से या कहीं से, तो मैक्सिमम क्या होगा? आपको वो पेन 0 रुपये में मिल जाएगा, आपने 100 रुपये में बेच दिया। जब हम लोग कोई चीज़ एट अ सर्टेन अमाउंट बेच देते हैं तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट फिक्स्ड हो गया उतना। बट मैंने ये कंसिडर किया कि मार्केट में मुझे 100 रुपये से नीचे में ही बाय करने मिलेगा, पेन हो या ऑप्शन जो कॉल या पुट हो, ठीक है। बट ऐसे नहीं हुआ, मुझे वो 200, 300, 400, 500 रुपये में बाहर बाय करना पड़ा, या फिर मेरा बाइंग प्राइस उतना ज़्यादा हाई हो गया, मेरा एनालिसिस गलत हो गया, ठीक है। तो मुझे लॉस अनलिमिटेड होगा, अनलिमिटेड रिस्क है ऑप्शन सेलर को, ठीक है। मैंने कमिटमेंट तो कर दिया कि मैंने 100 रुपये में बेच दिया, पैसा भी ले लिया, ठीक है। बट मुझे बाहर नहीं मिला 100 रुपये से नीचे, तो मुझे लॉस होगा। लॉस कितना होगा? सो अनलिमिटेड, वो कितने में बाय होगा वी डोंट नो, ठीक है। अब ऑप्शन बायर को अनलिमिटेड रिवॉर्ड मतलब अनलिमिटेड प्रॉफिट है। कैसे? अगर मैं एक पेन कंपनी से खरीद के लाता हूँ 100 रुपये में, अगर वो पेन बहुत रेयर है, ठीक है, वो पेन किसी बहुत बड़े आदमी का पेन है, जैसे समझो नरेंद्र मोदी जी का पेन है, उन्होंने को किसी साइन किया होगा, ठीक है, तो वो कितने में बेचा जाएगा, उसका ऑप्शन कितने में होगा, हमको नहीं पता। सेम लाइक हमारे ऑप्शंस में भी ऐसे ही होता है। क्या होता है कि अगर हम लोगों ने 100 रुपये में निफ्टी का 18,550 का कॉल खरीद लिया, कल कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ आ गई और मार्केट 1000 पॉइंट्स ऊपर चला गया, तो हमको प्रॉफिट भी 1000 पॉइंट से ही ऊपर होगा, ठीक है। सो यहाँ पर अनलिमिटेड प्रॉफिट, सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क लॉस, ठीक है। ऑप्शन बायर को लिमिटेड लॉस, सेलर को अनलिमिटेड लॉस, ठीक है। बायर को प्रीमियम, जितना एक्चुअल प्राइस है ऑप्शन का उतना ही उसको प्रीमियम लगेगा। सेलर को 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में प्रीमियम मार्जिन के लिए देना पड़ेगा, उसके अकाउंट में होना चाहिए, ठीक है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बायर एंड सेलर, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो होगा कि बहुत से लोग इस वजह से सिर्फ ऑप्शन बाइंग ही करते हैं, रिटेलर, ठीक है। 50 रुपया 100 रुपये का एक कॉल या पुट जो भी कुछ है ऑप्शन बाय कर लेते हैं, उनको 5-10 हज़ार में काम हो जाता है, ठीक है। बट जस्ट थिंक ऑफ इट गाइज, कि अगर आप मतलब रिटेलर, अगर रिटेलर कोई भी उसको बाय कर रहा है तो समवन इज सेलिंग देयर, ठीक है। कोई तो उसको सेल कर रहा है तभी आप बाय कर पा रहे हो, ठीक है। जो सेल कर रहा है वो 1.5 लाख रुपया मार्जिन दे रहा है, जो सेल कर रहा है वो छोटे से प्रॉफिट के लिए 1.5 लाख रुपया मार्जिन डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है। जो छोटे से प्रॉफिट के लिए अनलिमिटेड रिस्क ले रहा है, ठीक है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? कौन ये करेगा? ये जो स्मार्ट मनी है, बिग मनी है, या जिसके पास पैसा ज़्यादा है, वो ये रिस्क लेगा ऑप्शन सेल करने की। सो जस्ट थिंक ऑफ इट फ्रेंड्स, कि अगर वो इतना सब कुछ निगेटिव पॉइंट दिख रहा है सामने, अगर वो ये फिर भी वो ऑप्शन सेल कर रहा है, मतलब ऑप्शन सेल में प्रॉफिट होने का प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। क्यों? क्योंकि उसके साथ टाइम है, ठीक है। ऑप्शन ऑलवेज टाइम डिके होता है, थीटा डिके जिसे बोलते हैं, ठीक है। सो उसका पैसा ऑप्शन सेलर को मिलता है और वही उसका बेनिफिट होता है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आपका जो भी गोल है रियलिस्टिक होना चाहिए। जैसे 1.5 लाख पर अगर उसको 2,000 2,500 का प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है, तो उसका परसेंटेज आया 1%, 1.5%, जो भी कुछ होगा, कंसिडरिंग 2% प्रॉफिट पकड़ते हैं, ठीक है।
बट उसका प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। अब ऑप्शन बाइंग कौन से टाइम में करना चाहिए, ऑप्शन सेलिंग कौन से टाइम में करना चाहिए, वो बहुत ड्रिल्ड आउट करना पड़ेगा, वो बहुत उसके अंदर जाना पड़ेगा। तो बेसिक्स आपको इतना ध्यान में आना चाहिए। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन द ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर। ठीक है, इसका मतलब ये है क्या कि ऑप्शन बायर पैसा ही नहीं बनाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ऑप्शन बायर भी पैसा बनाता है। बट प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग देखें तो 33% प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग अ मनी ऑप्शन बायर की है और 66-67% ऑप्शन सेलर की है। ठीक है। जो कोई 100, 200, 500 करोड़ रुपया लेके अगर रिस्क ले रहा है तो वो पैसा देने के लिए नहीं रिस्क लेता है फ्रेंड्स। ठीक है, सो ऑप्शन बाय कब करना है, ऑप्शन सेल कब करना है, या हम जैसे लोग जो सिखाते हैं, हम ऑप्शन बाइंग भी करते हैं, ऑप्शन सेलिंग भी करते हैं, उसको कहते हैं स्ट्रेटेजी। ठीक है, उसको कहते हैं हेजिंग। ठीक है, सो हम लोगों को एक ही चीज़ समझ में आती है कि अपन ने अपना लॉस जो है लिमिटेड कर देना चाहिए। ठीक है, सो जो लॉस को प्रोटेक्ट करेगा वो ट्रेडिंग में पैसा बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, कैसे आगे हम लोग देखते हैं एक 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 चीज़। यहाँ तक ये हो गया डिफरेंस बिटवीन द ऑप्शन बायर एंड सेलर, हर एक का क्या प्रोज एंड कॉन्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शंस में और कुछ टर्म्स है जिसको हमको समझना बहुत ज़रूरी है, और वो सब बहुत इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, अब ऑप्शन के टाइप्स हो गए, कॉल एंड पुट हम लोगों ने देखा। ठीक है, अंडरलाइन एसेट, जो मैंने काफ़ी बार ये वर्ड यूज़ किया, अंडरलाइन एसेट मतलब आप कौन से अंडरलाइन एसेट पे काम करना चाहते हो। जैसे कि स्टॉक्स हो गया, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इंडेक्स हो गए। करेंसी में भी बहुत अच्छा काम होने लग गया, अभी बहुत ज़्यादा ह्यूज वॉल्यूम होता है यूएसडी आईएनआर में। ठीक है, उसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन में बहुत ह्यूज वर्क होता है। हमारे यूएसडी आईएनआर में जितना इंडिया में काम होता है उससे ज़्यादा दुबई में काम होता है। ठीक है, सो ये एक बहुत ही अच्छा अभी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया है यूएसडी आईएनआर, काफ़ी लोग बहुत ह्यूज वर्क करते हैं। ठीक है, एक्सपायरेशन डेट मतलब एक्सपायरी का, कौन से एक्सपायरी पे आप काम करते हो तो आप टाइम बाउंड हो गए फॉर दैट पर्टिकुलर एक्सपायरी। इंडेक्स की ऑप्शन में, इंडेक्स में हम वीकली एक्सपायरी पे भी काम कर सकते हैं, मंथली पर भी काम कर सकते हैं। स्टॉक ऑप्शंस और सारे फ्यूचर्स पे हम लोग सिर्फ मंथली एक्सपायरी में ही काम करते हैं। एक्सपायरी मंथली लास्ट थर्सडे को होती है, वीकली एवरी थर्सडे इंडेक्स ऑप्शन में एक्सपायरी अवेलेबल है। उसमें आता है आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी का थर्सडे एक्सपायरी होता है, फिन निफ्टी का ट्यूसडे एक्सपायरी होता है। ओके। अब ये हो गया आपके कैश मार्केट का। करेंसी मार्केट में एवरी फ्राइडे ऑप्शन और फ्यूचर, यहाँ पर फ्यूचर भी आपकी वीकली एक्सपायरी है। ठीक है, मंथली एक्सपायरी मिलती है आपको। ठीक है, सो करेंसी में हमें वीकली प्लस मंथली फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों का एक्सपायरी अवेलेबल है। ठीक है, इसमें अब हम लोग इंडिया में 4 करेंसी में काम कर सकते हैं, यूएसडी आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, यूरो आईएनआर एंड जेपीवाई आईएनआर। बट यूएसडी आईएनआर में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है, तो इट्स अ सेफेस्ट, ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। बाकी का थोड़ा वोलेटिलिटी हाई रहता है, रिस्क हाई रहता है। ठीक है, तो करेंसी में अभी बहुत और ज़्यादा है कि वो कितने पॉइंट्स में काम करता है, वो हम लोग यहाँ पे नहीं कवर कर सकते हैं ड्यू टू टाइम लिमिट। ठीक है, बट जो करेंसी का था वो भी मैंने आपको ऑप्शंस एंड फ्यूचर के हिसाब से बताया। लास्ट जो इसका एक टर्म है स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, कि हमें कौन से स्ट्राइक प्राइस पे काम करना है। ठीक है, जो अंडरलाइन एसेट जिसे हम लोग यहाँ पर स्पॉट प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, अंडरलाइन एसेट का जो करंट मार्केट प्राइस होता है उसे स्पॉट प्राइस बोलते हैं, और स्पॉट प्राइस के जो करीबी स्ट्राइक प्राइस होती है उसे एट द मनी स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। जो उसके भीतर मतलब उसके पहले वाला है, ठीक है, अंदर वाला है, उसको इन द मनी बोलते हैं, और आउट ऑफ द मनी बोलते हैं। वो आगे मैं आपको OI चेन पे, ऑप्शन चेन पे दिखाता हूँ। ठीक है, सो स्ट्राइक प्राइस
इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पर आपको ऑप्शंस बाइंग एंड सेलिंग करना है। यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस में अलग अलग स्ट्राइक प्राइस होती है, ठीक है। ये प्री डिफाइंड होती है सेबी की तरफ से ही, एक्सचेंज की तरफ से। हर एक अंडरलाइन एसेट, हर एक इंस्ट्रूमेंट की अलग अलग होती है। जैसे निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस वेरी करता है 50 पॉइंट से, बैंक निफ्टी का वेरी करता है 100 पॉइंट से, फिन निफ्टी का 100 पॉइंट से वेरी करता है। और स्टॉक्स का अलग अलग होता है, रिलायंस 20 पॉइंट से करता है, बाकी 10 पॉइंट से करते हैं बैंक्स के बाद बहुत सारे ICICI और एक्सिस वगैरह, ठीक है। सो हर एक का प्री डिफाइंड जो स्ट्राइक प्राइस होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। सो यहाँ तक ठीक है, विल कंटिन्यू नेक्स्ट स्लाइड्स पे मूव करते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन आपको NSE की वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये टेबल। ये टेबल में आपको डेटा मिलता है, डेटा ये मिलता है कि कितने लोग बेरिश है, कितने लोग बुलिश है, ठीक है। ये सारा एनालिसिस आप कर सकते हो। ये आपको एक रेंज भी डिफाइन करके दे देगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। मार्केट किस रेंज में रहेगा, मार्केट रेंज बाउंड रहेगा या ब्रेक करेगा, कौन से लेवल तक अप और कौन से लेवल तक डाउन जा सकता है, ये हम यहाँ से काफ़ी टाइम एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको ऑप्शन चेन में अगर आप जाओगे तो आप इक्विटी का मिलेगा, करेंसी, इंटरेस्ट रेट्स और कमोडिटीज़, सारा ऑप्शन चेन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ऑप्शन चेन के एक साइड में कॉल्स का डेटा होता है, दूसरी साइड में पुट्स का डेटा होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं ये लाइव दिखाऊँ क्या आपको, अगर आप लाइव दिखा देता हूँ, चलेगा क्या मैडम? Yes, sir. Yes, yes. जस्ट गिव मी अ सेकंड। दिख रहा है क्या? Yes, sir. It's visible. ओके फाइन। सी फ्रेंड्स, यहाँ पे NSEindia.com में जाकर आप ऑप्शन चेन को देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको इक्विटी स्टॉक में आया तो बाय डिफॉल्ट निफ्टी का लेगा, ठीक है। एक्सपायरी डेट जैसे मैंने बोला था वीकली प्लस मंथली होता है, तो 8 जून 15 22 ये हो गया मंथली एक्सपायरी 29 का, देन आपको नेक्स्ट मंथ का मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप 3 महीने तक की एक्सपायरी पे काम कर सकते हो, ठीक है। फ्यूचर में अगर आपको काम करना है तो करंट मंथ जून, जून जुलाई अगस्त 3 महीने आगे तक के एक्सपायरी पर आप काम कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शंस में फार अवे, दूर के एक्सपायरी के भी आप कॉल पुट पे काम कर सकते हो, बट वो अगर आप स्ट्रैटेजिकली कर रहे हो तो अलग बात है, नहीं तो नियर जो एक्सपायरी होती है उस पर काम ज़्यादा, वॉल्यूम ज़्यादा उसी पे होता है। ठीक है, तो अगर ये हो गया इक्विटी स्टॉक का, ये साइड में पूरा कॉल का डेटा आएगा, यहाँ पर पुट का डेटा आएगा, ठीक है। मैं यहाँ से मेरा कौन सा फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी का मैं जो भी मुझे चूज़ करना है वो इंडेक्स में ले सकता हूँ। अगर मुझे कोई स्टॉक का ऑप्शन चेन देखना है तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके, अगर मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं स्टॉक का ऑप्शन चेन देख सकता हूँ, एक्सपायरी डेट उस हिसाब से आएगी। अगर मैं स्टॉक लेता हूँ, स्टॉक ले लें, तो मुझे यहाँ पे 3 एक्सपायरी मिलेगी 29 जून, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि स्टॉक के ऑप्शन भी मंथली एक्सपायरी ही होती है, फ्यूचर भी मंथली एक्सपायरी ही होती है। पानी का तो मंथली एक्सपायरी होती है, यहाँ पर वीकली एक्सपायरी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब ये जो ग्रे पोर्शन में दिख रहा है इसको इन द मनी बोलते हैं, जो व्हाइट कलर में जो स्ट्राइक प्राइसेस दिख रही है उसको आउट ऑफ द मनी बोलते हैं, और जो भी स्पॉट प्राइस, जो भी स्ट्राइक प्राइस अगर स्पॉट प्राइस के करीबी है एकदम पास वाला, उसको इन द मनी स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, ठीक है। वो कैसे होता है, क्या होता है, वो देखते हैं वो थोड़ा।
ठीक है, ये हो गया इंडेक्स, उसके बाद में स्टॉक। अब मैं करेंसी का भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये USD INR, यहाँ पे सारे एक्सपायरी है, इतनी सारी एक्सपायरी अवेलेबल है। 27 मार्च 2024 तक का एक्सपायरी यहाँ पर दे रहा है। उसको कुछ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं, जो ज़्यादातर हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है। कंपनी जो या जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है उनके लिए वो ज़्यादा यूजफुल होता है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो करंट एक्सपायरी है 2 जून की, फ्राइडे। तो वो 2 जून के एक्सपायरी पे कहाँ पर काम चल रहा है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट कितने कहाँ पर है, वो हिसाब से पूरा ऑप्शन चेन वर्क करता है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डेटा है अवेलेबल। तो आजकल लोग USD INR के ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवेलेबल फॉर द ट्रेडिंग। ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स, ये इसका ऑप्शंस में ज़्यादा नहीं होता है, फ्यूचर्स में होता है, बट वो इंटरेस्ट रेट हमारे लिए यूजफुल नहीं है। वो जो भी बहुत इंस्टीट्यूट्स वगैरह है वो इस पे बेट लेते हैं। जब गवर्नमेंट बॉन्ड या डिबेंचर्स आता है वो टाइम पे वो इंटरेस्ट रेट पे कितना मूवमेंट होता है वो हिसाब से देखते हैं। नेक्स्ट है कमोडिटीज। ठीक है, यहाँ पे इसने बाय डिफॉल्ट कॉपर ले लिया है, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, इसके कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल दिखा रहा है, बट कोई कॉन्ट्रैक्ट कॉपर में तो हुआ नहीं है। गोल्ड का देखते हैं, तो गोल्ड में सिर्फ मेजर है, तो इसमें यहाँ पे सिर्फ थोड़े कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स है, बट इसमें भी कुछ डेटा अभी तक दिखाया नहीं है। मंडे डेटा, ये शीट अपडेट होगा OI का, तो डेटा आ सकता है। सिल्वर में भी कोई दिखा नहीं रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शंस के। ठीक है, सो और एक चीज, ये OI का ये एवरी 3 मिनट्स में अपडेट होता है। ठीक है, तो इसमें जो डेटा होता है 3 मिनट्स लैगिंग डेटा अपडेट होता है। ठीक है, तो 3-3 मिनट में ये OI चेंज जो है वो अपडेट होती है। वहाँ पर हमको देखने मिलता है कि जो भी कोई ट्रेडर है या जो इंस्टीट्यूट है उसका इंटरेस्ट बुलिश साइड में है या बेरिश साइड में है, हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है OI का। ठीक है, कि इसको कैसे एनालाइज करना, क्या करना। ठीक है, मैं इन शॉर्ट आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। इसको हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे यूज कर सकते हैं। अगर OI जो साइड का OI, ठीक है, अगर मैं कॉल का देखता हूँ तो कॉल साइड का जो स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होंगे वो स्ट्राइक प्राइस रेजिस्टेंस के जैसा काम करेगी। ठीक है, पुट साइड में जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर सबसे ज़्यादा नंबर है स्ट्राइक प्राइस पे, जैसे 18,500 पे 2,04,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है, तो ये सपोर्ट माना जाएगा। मतलब अगर मैं इस पे अभी ये डेट आज के टाइम पे, ठीक है 10 बज रहे हैं अभी, तो मैं अगर 10 बजे के टाइम पे कंसिडर करूँ तो 18,500 ये मेजर सपोर्ट है निफ्टी के लिए, 18,600 ये मेजर रेजिस्टेंस है। अनलेस कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है, ब्रेक मतलब ये डेटा शिफ्ट या ये डेटा चेंज नहीं होता है, तब तक सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो सकता है। अगर मैं आपको निफ्टी में दिखाऊं तो, अच्छा मेरा चार्ट दिख रहा है क्या? हेलो, यस सर, विजिबल है सर। विजिबल चार्ट मतलब निफ्टी का चार्ट। हाँ सर, हाँ सर। तो अगर आप देखो तो ये हाई इसका था 573 और लो था 478, तो ये 100 पॉइंट में ही मूवमेंट दिया कल निफ्टी। ठीक है, न तो ब्रेक हुआ, और अगर ब्रेक भी हुआ तो सस्टेन नहीं हुआ। ठीक है, वापस से वो ऊपर आ गया और 550 के रेंज में आ गया। तो इसका मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहीं पर ब्रेक नहीं हुआ और वो सेम पोजीशन पे वहीं पर एक ही रेंज में था। तो अब क्या आगे का टॉपिक है, अब जब इस तरह से सिनेरियो बनता है तो हमारे पास हमको वो सिनेरियो चेक करके स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करना पड़ता है या ट्रेडिंग करना पड़ता है, या अगर लेमन टर्म में बोलो तो वो हिसाब से हम बेट लेते हैं। ठीक है,
कि मार्केट साइडवेज रहेगा, मार्केट डाउन रहेगा, मार्केट बुलिश और बेरिश क्या रहेगा, वो हिसाब से हमको हमारे ट्रेडिंग बेट्स या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज डिप्लॉय करनी होती है। ठीक है, हम आते हैं आगे उस पर। सो OI चेन, ये बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली। ये अगर पूरा 5-6 घंटे भी लिए तो ये सीखना बहुत मतलब इतना टाइम लेता है इसको पूरा अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो। ठीक है, बट मैं इसका आपको एक लेमन टर्म में क्या कैसे आप इसको देख सकते हो वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर टाइम मिला तो मैं आगे इसको वापस से आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये ऑप्शन चेन कंटिन्यूड, जैसे मैंने आपको इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी के स्ट्राइक प्राइसेस कैसे डिफाइंड होते हैं वो बताया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें एक और पॉइंट है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू, वो भी मैं थोड़ा बता देता हूँ, इसलिए मैंने बोला कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, उसका एक अगर मेरा मैं एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे हूँ, ठीक है, तो मेरे जो भी प्राइस है, जो भी ऑप्शन का प्राइस चल रहा है, वो प्राइस मैं इंट्रिंसिक वैल्यू ये बहुत ही मिनिमम होगा। अगर 550 के ऊपर मेरा स्पॉट का प्राइस जाता है, मतलब निफ्टी का प्राइस अगर 550 से ऊपर जाता है, तो ये जो मेरी करंट मार्केट प्राइस है, इसमें कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू आएगा। इंट्रिंसिक मतलब इसमें कुछ वैल्यू आएगा, अदरवाइज ये जीरो है। अदरवाइज इसका टाइम डिके जो है वो होना है, ये वैल्यू इतना कम होगा। ठीक है, इसका अगर मैं एक एग्जांपल दूँ ना, तो जैसे चिप्स का पैकेट होता है, ठीक है, चिप्स के पैकेट में चिप्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, बट हवा जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो प्राइस अभी दिख रही है आपको, ये हवा है। ठीक है, इसका डिके होना कंपलसरी है, इतना वैल्यू डिके होगा। अगर मार्केट ऊपर भी बढ़ा तो ये वैल्यू डिके होगा, अगर नीचे जाएगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से 550 से मार्केट 750 हो गया, तो निफ्टी स्पॉट प्राइस 200 पॉइंट से बढ़ा, लेकिन इसका प्राइस 200 पॉइंट से नहीं बढ़ेगा। ये 200 पॉइंट होगा, उसमें से -93 आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ी, क्योंकि आपने 93 रुपीज देके ऑप्शन बाय किया है। तो आपको एक्चुअली 107 107 रुपए का ही इसमें प्रॉफिट होगा, दो अ मार्केट इंक्रीज बाय 200 पॉइंट। जैसे मैंने वो ऑप्शन और फ्यूचर का पे ऑफ चार्ट दिखाया था, तो मैंने बोला था कि आपको ऑप्शंस का जो भी अमाउंट आप पे करते हो, उसके बाद में आपका ब्रेक इवन स्टार्ट होगा। तो वो इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो अभी मार्केट का स्पॉट प्राइस चल रहा है 534। ठीक है, सो इसमें ये जो पूरा है, ये पूरी की पूरी प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू है, सॉरी एक्सट्रिंसिक वैल्यू है, सॉरी सॉरी एक्सट्रिंसिक वैल्यू, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं है। अब अगर मैं 18500 के स्ट्राइक प्राइस पे देखूँ तो इसका 124 रुपीज प्राइस चल रहा है। सो यहाँ से अभी स्पॉट का प्राइस 534 चल रहा है, तो 34 रुपीज इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है। ठीक है, 34 रुपीज अगर मैं 124 से माइनस करूँ तो 90 रुपीज इसमें एक्सट्रिंसिक वैल्यू है। तो जो मैंने आपको बोला था कि ऑप्शन सेलर पैसा बनाता है, तो ऑलरेडी वो 90 रुपीज तो उसने यहाँ पर जब वो सेल किया है तो उसका प्रॉफिट में था। अगर बेट उसके अगेंस्ट जाती है, फिर भी उसको 90 पॉइंट्स तक एक गैप मिलता है, एक कुशन मिलता है। ठीक है, अगर 90 पॉइंट्स तक उसके पास कुशन है, मतलब अगर मैंने 18500 पे एक कॉल ऑप्शन सेल किया है 124 रुपीज पे, तो मुझे लॉस स्टार्ट होगा 18624 रुपए से आगे, उसके बाद मुझे उसका लॉस स्टार्ट होगा। तो मुझे क्या मिला, 124 पॉइंट्स का कुशन मिल गया, जिसमें स्पॉट का प्राइस अभी 18534 चल रहा है। ठीक है, तो 34 रुपीज इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई, 90 रुपीज एक्सट्रिंसिक वैल्यू हो गई। ये एक्सट्रिंसिक वैल्यू ही ऑप्शन सेलर को पैसा कमा के देती है। क्यों? क्योंकि इसका प्राइस डिके होना ही है। ठीक है, जैसे जैसे ये प्राइस डिके होते जाएगा, वैसे वैसे ऑप्शन सेलर पैसा बनाते जाएगा। ठीक है, उसका रियलिस्टिक गोल होता है 2 to 3%। ठीक है, उतना पैसा उसका बन गया, वो उसका ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर देता है। ठीक है, तो
ये हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। इसी में आपको ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग का कौन पैसा बनाता है, किसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये सब डिपेंड्स करता है। अब सेम जो मैंने ऑप्शन सेलर का प्लस पॉइंट बताया, वही माइनस पॉइंट ऑप्शन सेलर को है, क्योंकि उसका ब्रेक इवन उसके बाद में उसको मिलना शुरू होगा, ठीक है। तो अगर मैं 18,500 का 124 रुपए में कॉल बाय करता हूँ तो मुझे प्रॉफिट होगा 18,624 के बाद में। तो ये एक्सपायरी के टाइम का कैलकुलेशन है, ठीक है। इन बिटवीन थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर मिलेगा तो प्रॉफिट ऑप्शन बायर को भी हो सकता है, ऐसे नहीं कि उसको 624 के बाद में ही प्रॉफिट मिलेगा। बट अगर कैलकुलेशंस देखा जाए तो ये इस तरह से वर्क करता है, ओके। भरत सर, सॉरी टू डिस्टर्ब, बट कैन वी इंक्रीज द वॉल्यूम, लाइक ऑडियो थोड़ा सा हे ऑडियो, पे, ठीक है। अभी a bit more if possible. हेलो, अभी आ हाँ रहा सर, है? बेटर है सर, बेस्ट सर, बेस्ट सर। बेटर ना, ठीक है। यस सर, सॉरी टू डिस्टर्ब। ओके, नो 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 इशू, ठीक है। सो ये हुआ ऑप्शन चेन का फंडा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन ग्रीक्स। ये दिस पार्ट इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। मेरा पीपीटी दिख रहा है ना आपको? Yes, sir. यस सर, यस सर। तो दिस इज अ डिफिकल्ट स्टोरी। जब भी कोई बेट लेता है तो इसका कैलकुलेशन करके लेना इट्स नॉट पॉसिबल। मैन्युअली अगर कैलकुलेशन करते हैं, अगर कोई कॉन्ट्स यूज करता है या किसी के पास सॉफ्टवेयर है या कोई सिर्फ ग्रीक्स पर ही पूरा एनालिसिस करके अगर स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करना चाहता है तो डिफरेंट स्टोरी है। बट ग्रीक्स आपको पता होना चाहिए। सो ऑप्शंस में ये 5 ग्रीक्स वर्क करते हैं: डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा एंड रो। सो डेल्टा क्या होता है? डेल्टा जैसे जैसे आपका प्राइस या स्पॉट का प्राइस बढ़ते जाएगा तो डेल्टा फॉर दैट पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस, जैसे हम लोग यहाँ पे 18,550 कंसिडर करते हैं, ठीक है, वो एट द मनी है। तो एट द मनी का डेल्टा होता है 0.5, इन द मनी का डेल्टा होता है अबोव 0.5, ठीक है। जैसे जैसे आप इन द मनी जाते जाओगे वैसे वैसे डेल्टा बढ़ते जाएगा। डेल्टा कॉल साइड वेरी करता है 0 to 1 और पुट साइड वेरी करता है 0 to -1, ठीक है। इसके बाहर नहीं जाता है। अब डेल्टा 1 हो गया मतलब क्या हो गया? कॉल साइड में आपका ऑप्शंस ये डीप इन द मनी हो गया। इसका मतलब अगर स्पॉट का प्राइस 1 रुपया 1 पॉइंट से बढ़ेगा तो आपका जो डीप इन द मनी वाला स्ट्राइक प्राइस है उसका प्राइस भी 1 रुपए से बढ़ेगा। अगर वो 1 रुपए से घटता है स्पॉट प्राइस तो आपको 1 रुपए से आपके स्ट्राइक प्राइस मतलब आपके ऑप्शन का प्राइस भी घटेगा, ठीक है। वो हो गया डेल्टा 1, एकदम डीप इन द मनी, ठीक है। इसलिए एटीएम प्राइस से जो भी ऊपर होते हैं उसका डेल्टा 0.5 से ऊपर बढ़ते बढ़ते जाता है। जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस इन द मनी होते जाएगी, डीप इन द मनी होती जाएगी, वैसे वैसे डेल्टा बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस ओटीएम होती जाएगी मतलब आउट ऑफ द मनी होती जाएगी, वैसे वैसे डेल्टा कम कम होते जाएगा। सो जो भी ओटीएम की स्ट्राइक प्राइसेस होती है उसका डेल्टा बिलो 0.5 होता है। इसका मतलब क्या है? अगर सीधा सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहूँ तो अगर मैं आज मार्केट का स्पॉट का प्राइस चल रहा है 18,534, अगर मैं 600 650 के स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन बाय करता हूँ, कॉल बाय करता हूँ, तो उसका डेल्टा होगा 0.25 से 0.3 के बीच में, ठीक है। सो अगर मेरा निफ्टी का प्राइस, स्पॉट का प्राइस 100 रुपए से बढ़ेगा तो जो स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन मैंने बाय किया है अगर उसका डेल्टा 0.2 0.2.5 या 3 होगा, हम लोग 0.25 पकड़ते हैं, तो मेरा ऑप्शन का प्राइस 25 रुपए से बढ़ेगा। दो निफ्टी इंक्रीज बाय 100 पॉइंट्स, ठीक है। सो स्पॉट प्राइस इनटू डेल्टा अगर हम करते हैं तो हमारा करंट स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन की जो प्राइस है वो कितनी बढ़ेगी या घटेगी हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम पुट साइड में भी, बट वो उसका -1 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कैलकुलेशन सेम ही आएगा, ठीक है। सिर्फ कॉल मतलब जब मार्केट बुलिश होता है, पुट मतलब मार्केट बेरिश जब जाता है तो उसका बाइंग प्राइस वेरी करता है, वो हिसाब से डेल्टा +1 या -1 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है।
दिस इज द डेल्टा। अब डेल्टा किस पे डिपेंड होता है? तो डेल्टा डिपेंड होता है गामा पे। ठीक है, गामा 4 डिजिट में 4 डेसिमल्स में वर्क करता है। ठीक है, 0.00 और वो गामा डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है विथ योर स्पॉट प्राइस। अगर स्पॉट प्राइस 1 पॉइंट से भी बढ़ता है तो गामा 0.4 डेसिमल का जो फ्रैक्शन है उसमें बढ़ते जाता है। सो स्पॉट प्राइस बढ़ेगी या घटेगी तो गामा बढ़ेगा और घटेगा। गामा अगर बढ़ता है तो डेल्टा बढ़ेगा। मतलब अगर मेरा स्टॉक का स्पॉट का प्राइस अभी 18,550 है और स्पॉट प्राइस 20 पॉइंट से बढ़ा है, मतलब 18,550 से 18,570 हो गया, तो गामा कुछ फ्रैक्शंस में बढ़ेगा। और गामा अगर बढ़ेगा तो डेल्टा बढ़ेगा। सो डेल्टा 0.5 से बढ़ के 0.55 होगा या 0.6 होगा। ठीक है, तो अब जो मेरा मल्टीप्लिकेशन होगा, स्पॉट प्राइस बढ़ेगा, वो 0.5 के बदले 0.55 या 0.6 होगा। मतलब अब इसके बाद में अगर और 20 पॉइंट्स बढ़ा निफ्टी तो 20 इंटू 0.6 डेल्टा, ये मल्टीप्लिकेशन से मेरे स्ट्राइक प्राइस का जो भी मैंने ऑप्शंस बाय किया है उसका प्रीमियम बढ़ेगा। अब मैं हर एक पॉइंट पे ये कैलकुलेशन मैन्युअली नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, सो हम क्या कर, मतलब अगर मुझे देखना है कि मैंने, जैसे अब मुझे ये डेल्टा क्यों सीखना है या मुझे इसका मोटा मोटी एनालिसिस क्यों चाहिए? अगर मेरा टेक्निकल एनालिसिस कहता है कि मार्केट का प्राइस अभी 550 है और यहाँ से 650 होगा या 450 होगा, 100 पॉइंट बढ़ेगा या 100 पॉइंट घटेगा, तो मुझे पता चाहिए कि अगर मैंने 550 का कॉल या पुट कोई भी ऑप्शंस बाय किया है या सेल किया है तो उसका प्राइसेस, उसके प्राइस कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, सो मैं अगर सोचता हूँ कि निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगा और मैंने एट द मनी का लिया है, तो मैं मोटा मोटी कैलकुलेट कर सकता हूँ कि मेरा जो प्रीमियम है वो प्रीमियम 50 से 60 रुपए तक बढ़ेगा। दो स्पॉट प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज बाय 100। मैं कॉल और पुट दोनों साइड से बोल रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं इंक्रीज और डिक्रीज दोनों बोल रहा हूँ। ठीक है, सो मेरा जो प्रीमियम है, मैंने जो ऑप्शंस बाय किया है उसका 50 टू 60 रुपीज़ बढ़ेगा। अब इसमें और एक फैक्टर एंटर करता है, वो है थीटा। थीटा मतलब टाइम। ठीक है, इसका कैलकुलेशन होता है टाइम के साथ में। अब अगर ये 100 पॉइंट, जो मेरा एनालिसिस मुझे बोल रहा है कि मार्केट 100 पॉइंट्स बढ़ेगा या घटेगा, बट ये 100 पॉइंट्स बढ़ने के लिए अगर इसने कम टाइम लिया तो मेरा डेल्टा, इसका जो कैलकुलेशन है वो डायरेक्टली मुझे वर्क करेगा। बट इसने अगर 2 दिन या 3 दिन ले लिए तो उसमें थीटा डीके का कैलकुलेशन ऐड होगा और जितना मुझे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 50 या 60 रुपीज़, वो मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि माइनस थीटा वैल्यू करना होगा। सो माइनस जो भी थीटा वैल्यू या जो थीटा डीके होगा, जो टाइम डीके होगा, उसका जो प्रीमियम है वो माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग बहुत सी बार, आप में से बहुत से लोग ऑप्शंस में काम करते होंगे, उन लोगों को ये चीज़ ध्यान में आई होगी कि इतना प्रीमियम बढ़ना चाहिए था लेकिन प्रीमियम तो 10-20 रुपया ही बढ़ा, ऐसे क्यों हुआ? ठीक है, तो दैट डिपेंड्स ऑन द थीटा, टाइम डीके पे वर्क करता है। ठीक है, सो हर बार हम लोग ये कैलकुलेशंस करके ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। हमको जस्ट मोटा मोटी इतना नॉलेज चाहिए, अगर मार्केट स्ट्रेट अवे बढ़ गया तो डेल्टा के हिसाब से हमको मोटा मोटी 50 से 60 रुपया प्रीमियम बढ़ेगा। ठीक है, अगर 100 पॉइंट के कैलकुलेशन दे रहा हूँ मैं, अगर कम हुआ तो रिस्पेक्टिव सेम सिनेरियो रहेगा। अब ये जो थीटा है ये होता है ऑप्शन सेलर के साइड में, इसका बेनिफिट सिर्फ ऑप्शन सेलर को मिलता है। थीटा डीके, टाइम डीके, ये आपके प्रीमियम की प्राइसेस को घटाता है। ठीक है, कम करता है, इसलिए सेलर इसमें पैसा बनाता है। ठीक है, वो जीरो तक का वेट नहीं करते हैं। ठीक है, उनका एक सर्टन कैलकुलेशंस होता है, वो कैलकुलेशंस, वो उनका प्राइस आ गया तो वो उनका बेट स्क्वेयर ऑफ कर देते हैं, उनके ट्रेड स्क्वेयर ऑफ कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया थीटा। वेगा एंड रो, ये आपके इंटरेस्ट रेट पे और कितना टाइम ड्यूरेशन है उस पर डिपेंड करता है। इस पर एक, अगर हमको ऑप्शन का प्राइस फाइंड आउट करना है कि इसका ऑप्शन का प्राइस क्या चल रहा है, तो एक ब्लैक एंड शोल कैलकुलेटर आता है जिसमें ये सारी वैल्यूज डाल के हम लोग उसका प्रीमियम का प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है,
तो अगर आप गूगल करोगे और ब्लैक शोल डालोगे तो आपको वो कैलकुलेटर मिल जाएगा। उसमें आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, कौन सा एक्सपायरी का ले रहे हैं उसकी प्राइसेस डालना होता है। एक कॉन्सेप्ट होता है आईवी करके, हमको उसको आईवी की वैल्यू डालना होता है। ठीक है, आईवी मतलब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। ठीक है, और वो आपको सारा जो ग्रीक से उसका वैल्यू देता है, डेल्टा गामा थीटा वेगा एंड रो, और वो आपको आपके कॉल पुट के प्राइसेस भी देता है कि ये इतना प्राइस चाहिए। अगर आप देखना चाहो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. ब्लैक एंड शोल ऑप्शन फॉर्मूला का स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके फाइन। सो मैं 18,500 स्पॉट की प्राइस, सॉरी 18,334 है। स्ट्राइक प्राइस में ले रहा हूँ 18,550। ठीक है, एक्सपायरी 8 जून। ठीक है, वोलेटिलिटी हम लोगों को ऑप्शन चेन में मिल जाएगा। अगर मैं कॉल साइड देख रहा हूँ तो वोलेटिलिटी दिखा रहा है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 8.96। ठीक है, इंटरेस्ट रेट अभी 7% के आसपास है। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो 7% ही रखते हैं हम लोग। डिविडेंड निफ्टी में कुछ नहीं मिलता है डिविडेंड, सो 0। ठीक है, अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। तो ये मेरा कॉल ऑप्शन प्रीमियम, पुट ऑप्शन प्रीमियम, कुछ तो गड़बड़ है। सर ठीक है, कॉल ऑप्शन प्रीमियम 10 रुपया दिखा रहा है। पुट ऑप्शन प्रीमियम 200 बार, कुछ तो गड़बड़ है, wait। सी वो पूरा उसके कैलकुलेशन चेंज हो गया। ठीक है, चलो वो भी अच्छा सीखने मिला। सो 534 यहाँ पे चाहिए। ठीक है, सी ये आया इसका डेटा। सो कॉल ऑप्शन प्रीमियम चाहिए 68 रुपीज़। ठीक है, पुट का प्रीमियम चाहिए 70 रुपीज़। डेल्टा मैंने बोला था एट द मनी का है तो नियरेस्ट पॉइंट 0.5 के आसपास होगा, सो 0.498 है। पुट साइड का 0.5। गैमा 4 डेसिमल में आ रहा है। थीटा माइनस, इसका भी माइनस क्योंकि दोनों ऑप्शंस डिके हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये दोनों माइनस में है। रो रो एंड वेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्राइजेस 68 एंड 70 है क्या 550 का। सो 550 का ये प्राइस बहुत ज़्यादा है। सो मंडे को आपको इसमें करेक्शन या फिर टाइम डिके दिखेगा। ठीक है, पुट का प्राइस 70 के पास में है, सो ये प्राइस नियर अबाउट पास में है, तो इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर बढ़ रहा था, सो इसमें प्रीमियम बढ़ गया है, ये प्रीमियम करेक्ट होगा। ठीक है, इसका आइडियल वैल्यू 68 चाहिए बट वो अभी 93 है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू ऑप्शन सेलर्स को बेनिफिट होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, इस तरह से ये ब्लैक एंड शोल्स का ऑप्शन कैलकुलेटर, जो प्रीमियम कैलकुलेटर होता है उसका ये फॉर्मूला होता है और वो इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें एक चीज़ मैं आपको कवर करना और करना चाहता हूँ। आईवी हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या होता है ये वोलेटिलिटी मतलब आपका मार्केट में कितना ज़्यादा वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी मतलब मार्केट कितना अप एंड डाउन कर रहा है। अगर ये वोलेटिलिटी 18 एंड अबव होती है तो मार्केट वहाँ से नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब मार्केट में डाउनफॉल या बेरिश व्यू होता है तो वोलेटिलिटी 15 एंड अबव बढ़ती है। ठीक है,
15-18 से ऊपर मार्केट अच्छा खासा डाउनफॉल आने के चांसेस है, 20-22 जैसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, अगर वोलेटिलिटी बिलो 15 और स्पेसिफिकली अगर 12 के नीचे है तो मार्केट में स्टेबिलिटी है, वोलेटिलिटी कम है मतलब मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो हर एक स्ट्राइक प्राइस का वोलेटिलिटी आईवी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ये डिफरेंट होता है। ठीक है, ये एटीएम के पास है तो ये ज़्यादा मैटर करता है, जिसका पुट का 8.90 है, कॉल सेट का 8.96 है। ठीक है, तो ये ज़्यादा इसमें वॉल्यूम आता है तो ये वोलेटिलिटी ज़्यादा मायने रखती है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अदर वोलेटिलिटी से। ठीक, तो ये हो गया आपका इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी। एक और टर्म होती है जो स्टॉक मार्केट के पूरा ओवरऑल अपना इंडियन मार्केट पे वर्क करती है, दैट इज कॉल्ड विक्स, वोलेटिलिटी इंडेक्स, जो हम लोग चार्ट पे देख सकते हैं, इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स। तो वो ओवरऑल पूरे मार्केट का, पूरे स्टॉक मार्केट का वोलेटिलिटी हमको दिखा देता है। ठीक है, तो विक्स अगर बढ़ते रहा तो मार्केट नीचे आता है। ठीक है, अगर विक्स नीचे आते रहा तो मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, इट्स वोलेटिलिटी इंडेक्स के बारे में, और ये यहाँ पर आईवी के बारे में। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। ठीक है, जैसे हमने देखा था, पीपीटी दिख रहा है ना? Yes, sir. हाँ, तो टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स, हेजर्स होते हैं, स्पेक्युलेटर्स होते हैं। स्पेक्युलेटर्स मतलब हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, प्योर ट्रेडिंग। ठीक है, हेजर्स जो होते हैं जो खुद का पोर्टफोलियो हेज करते हैं, या जो हेज के ही बेट्स लेते हैं, कॉन्ट्रा बेट्स लेते हैं। सो हेज फंड्स एंड ऑल दिस थिंग्स वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है, और तीसरे होते हैं आर्बिट्रेजर्स। ठीक है, ये एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट या बहुत बड़े जो भी इन्वेस्टर या ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए काम होता है, जो सिर्फ बीच में जो भी कुछ मार्जिन मिलता है वो आर्बिट्रेज करके करते हैं। इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्ट्रीम बोल सकते हो आप आर्बिट्रेटर्स का। तो हम लोग हैं स्पेक्युलेटर्स मतलब ट्रेडर्स। ठीक है, जो स्पेक्युलेट करते हैं मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो हमको ऑप्शन बाय करना है, फ्यूचर बाय करना है, ऑप्शन सेल करना है, फ्यूचर सेल करना है, ऑप्शन में कॉन्ट्रा बेट्स लेने हैं, जो भी कुछ ट्रेडिंग करते हैं तो हम लोग इसमें स्पेक्युलेटर्स में आते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब आगे मूव करते हैं, और दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमको ट्रेडिंग कैसे करना है। ठीक है, सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? क्योंकि इसके आगे हम लोग अब मैं आपको स्ट्रैटेजी भी दिखा देता हूँ ऑप्शन का। ये एडवांस पार्ट आता है और इससे एडवांस होता है एडजस्टमेंट। सो एडजस्टमेंट हम लोग यहाँ पर नहीं कवर कर सकते, बट ये हम लोग स्ट्रैटेजी जो एडवांस पार्ट है वो भी मैं आपका बेसिक तक था, तो बट टाइम अलाउज है और कुछ बताना है तो मैं एडवांस में भी आपको ये सब दिखा सकता हूँ कि शॉर्ट स्ट्रैटेजीज वगैरह कैसे करते हैं। तो बिफोर दैट अगर आपको यहाँ तक बेसिक का जो टॉपिक था, थियरी टॉपिक, यहाँ तक किसी को कोई क्वेरीज या क्वेश्चन आंसर्स है तो हम लोग कवर करते हैं। उसके बाद हम लोग आगे जो एडवांस पार्ट है, स्ट्रैटेजी कैसे डिप्लॉय करना है, स्ट्रैटेजी कैसे डिसाइड करना है, और स्ट्रैटेजी में कौन सी स्ट्रैटेजी आती है वो लोग हम लोग देखते हैं। तो अगर कुछ क्वेश्चन आंसर है तो आप ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं? No, sir, there are no questions as such. If anybody wants to ask any doubt, you can feel free to raise your hand so that we can unmute you. You can directly talk with sir. So there are no doubts as of now. Okay, fine. So Yes. we'll move to the So someone has asked how algebra is used in futures and options. राइट। तो उसी का पार्ट है कि स्ट्रेटेजी सी कैलकुलेशन सी इसमें है, क्योंकि हम लोग जो ऑप्शंस का और एक फंडा मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शंस में प्रॉफिट और लॉस इसके लिए काम करने से अच्छा है, ग्रीड और फेयर इससे काम करने से अच्छा है कि हम लोग सिर्फ, अगर आपको ऑप्शंस में पैसा बनाना है ना तो ऑप्शंस में आपको एक ही काम करना होगा कि आपको सिर्फ लॉस मिनिमाइज करना है। आप जो भी ट्रेड जो भी बेट लोगे, सो डोंट गो फॉर द प्रॉफिट,
जस्ट वर्क ऑन कि आपको लॉस कैसे मिनिमाइज करके आएगा। लॉस आप अगर लॉस मिनिमाइज टू लॉस जीरो और उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना अगर आप ऑप्शंस में सीख जाओगे तो आप पैसा बनाओगे 100%। सी दिस इज अ प्रोबेबिलिटी गेम। प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपको या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा या कुछ नहीं होगा। सो अगर हम प्रोबेबिलिटी में इसको कंसिडर करते हैं 50-50 या 40% प्रॉफिट एंड लॉस, 20% कुछ नहीं होगा कि जहाँ पे लिया वहीं पे सेल किया, कभी कुछ मिला ही नहीं। ठीक है। सो अगर मेरा 10 ट्रेड में लेता हूँ जिसमें से प्रोबेबिलिटी है, मेरा टेक्निकल एनालिसिस पे, मैं ब्लंड मतलब ब्लफ नहीं बोल रहा हूँ कि किसी ने बोल दिया और ये कर दिया, वो वाले 10 ट्रेड नहीं, एनालिसिस करके या स्ट्रैटेजी करके, जो मैं स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा या जो मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है। तो जो स्ट्रैटेजीज करके एनालिसिस करके हम 10 ट्रेड लेते हैं, तो 10 ट्रेड में से ऐसा पकड़ो प्रोबेबिलिटी आपकी 40% लॉस की है, 40% प्रॉफिट की है। जब हमें प्रॉफिट होता है तो हमको कुछ नहीं करना है, हमारी स्ट्रैटेजी इज गोइंग वेल। ठीक है, हमको कुछ भी वर्क नहीं करना है। बट जब हमारी स्ट्रैटेजीज या जो भी हमारा एनालिसिस है इट गोइंग अगेंस्ट अस, हमको उस टाइम पे उसको मैनेज करना होता है। ठीक है। और हम लोग जो भी स्ट्रैटेजी लेते हैं वो हेज होती है, स्ट्रैटेजी इटसेल्फ हेजिंग होता है। ठीक है। अब ये स्ट्रैडल्स वगैरह ठीक है, बट इसमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये सिंगल साइड होती है। सो जब हम इसको एडजस्ट कर सके या हम लोग स्ट्रैटेजीज में हेजिंग करते हैं, उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग सिर्फ लॉस मिनिमाइज करते हैं। बिलीव मी, अगर आप लॉस को कम से कम कर सको, अगर आप लॉस पे प्रॉपर वर्क करो, तो आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग में या फ्यूचर ट्रेडिंग में पैसा बनेगा ही बनेगा, और वो बहुत अच्छे नंबर से बनेगा। ठीक है। मंथली आपको 4% तक भी पैसा बन सकता है। ठीक है। मंथली 4% मतलब एनुअली 48-50% हो जाता है, तो विच इज़ अ वेरी हाई। ठीक है। उसमें से मैं बोलता हूँ कि कुछ लॉसेस भी हो गए तो 25-30% भी प्रॉफिट अगर मिलता है तो दैट इज़ अ वेरी गुड प्रॉफिट। ठीक है। सॉरी, ईयरली, मैं मंथली वर्ड यूज़ किया शायद बीच में। तो 25 से 30% पैसा भी अगर आपको मिलता है तो इट्स वेरी गुड। ये आपके दिमाग में अगर सेट है, आप अगर लॉस मिनिमाइज कर पाते हो तो आप इसमें बहुत अच्छे से पैसा बनाते हो। और जो 11% मैंने आपको स्टार्टिंग में ये सब बोला था, वो 11% पब्लिक इसी में आती है। वो यही चीज़, उनका माइंडसेट और उनका ट्रेडिंग स्टाइल इसी में फिक्स होता है, इसी वजह से वो पैसा बना पाते हैं। ठीक है। तो विल गो अहेड एंड हम लोग स्ट्रेटजीज देखते हैं कि अब ये शॉर्ट स्ट्रैडल, स्ट्रैडल मतलब क्या, कि जो भी मैंने एटीएम बोला, एटीएम के कॉल और पुट दोनों सेल कर देते हैं। अब ये क्या होता है कि अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट साइडवेज रहेगा, ठीक है, और मार्केट एक नैरो रेंज में रहेगा, तो मैंने दोनों कॉल और पुट दोनों ऑप्शन जो है वो मैंने एटीएम के सेल कर दिए। अब यहाँ पे एटीएम मतलब अपना 18,550 का कॉल और पुट मैं सेल कर दिया, कंसीडरिंग मेरा एनालिसिस मुझे बोलता है कि ये अगले 4 मतलब मंडे टू थर्सडे तक मार्केट एक रेंज में रहेगा 200 पॉइंट के। ठीक है। तो मैंने ये किया। ठीक है। अगर मार्केट साइडवेज रहा तो मुझे यहाँ पे मैंने जो सेल किए हैं ऑप्शन, उसका प्रीमियम खाने मिलेगा, मतलब वो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, ये बहुत हाईली रिस्की है, क्योंकि क्या है, मैं दोनों साइड का बेरिश और बुलिश कॉल और पुट, ठीक है, दोनों साइड का अनलिमिटेड रिस्क लेके जा रहा हूँ। ठीक है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है इट्स अ रिस्की स्ट्रैटेजी। ठीक है। अगर, इसलिए ये बोलते हैं कि करंट मंथ का मतलब नेक्स्ट मंथ का मतलब जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा उतना ज़्यादा वोलेटिलिटी होगा, उतना ज़्यादा वोलेटिलिटी होगा उतना ज़्यादा आपको प्रीमियम मिलेगा। ठीक है। और जितना ज़्यादा प्रीमियम होगा उतने आपके प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा होंगे। जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे प्रीमियम डिके होते जाएगा, और जो डिके होगा वो आपका प्रॉफिट रहेगा। ठीक है। बट मैं ये स्ट्रेटेजी बहुत मतलब बहुत रेयरली यूज़ करने के लिए बोलता हूँ या नहीं ही बोलता हूँ, क्योंकि इसमें अगर मार्केट वोलेटाइल होता है तो पैनिक्स ज़्यादा क्रिएट होते हैं। ठीक है। अगर कोई इवेंट्स है सामने, जैसे कि इलेक्शन है या आरबीआई का कोई स्टेटमेंट आने वाला है या बजट आने वाला है या कोई स्टॉक पर्टिकुलर है और स्टॉक का अगर आपको रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, सो वो टाइम पे मार्केट या पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगा,
और इसमें आपको दिक्कत आ सकती है। ये स्ट्रैटेजी बिगिनर्स के लिए कम लोग यूज कर सकते हैं। जो इसमें पोजीशन एडजस्टमेंट, अगर आपके ब्रेक इवंस के बाहर मार्केट जाता है, मतलब जो आपने स्ट्रैडल डाला है, अगर ये आपको लॉस मेकिंग करा रहा है तो आपको उसमें एडजस्टमेंट करना होता है। जो वो कर सकता है उसमें ये स्ट्रैटेजी डालना होता है। ठीक है। सो सिंपली स्ट्रैडल मतलब क्या है कि आपको एटीएम का कॉल और पुट, शॉर्ट स्ट्रैडल में कॉल और पुट सेल करना होता है। ठीक है। मार्केट का सिनेरियो आपका क्या होना चाहिए कि मार्केट नेक्स्ट एक्सपायरी तक, मतलब सॉरी एक्सपायरी तक साइडवेज होगा तो आपका प्रॉफिट बनेगा। ठीक है। अब उसके आगे वाला होता है शॉर्ट स्ट्रैंगल। शॉर्ट स्ट्रैंगल में क्या होता है, हमने पहले देखा कि स्ट्रैडल देखा, शॉर्ट किया मतलब एटीएम पे काम किया। अब हमको उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बोला कि उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। अब मुझे रिस्क नहीं उठाना है। ठीक है। मुझे प्रॉफिट कम हुआ तो चलेगा बट मुझे रिस्क नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ओटीएम मतलब फार स्ट्राइक प्राइसेस के, फार अवे स्ट्राइक प्राइसेस के ओटीएम के कॉल एंड पुट बेच दूंगा। अब 550 मेरा एटीएम चल रहा है तो मैं 750 का कॉल बेचूंगा और 350 200 पॉइंट नीचे का पुट बेच दूंगा। ठीक है। सो ये दोनों हो गए मेरे फार स्ट्राइक प्राइस, फार अवे स्ट्राइक प्राइसेस। ठीक है। ओटीएम हो गया, आउट ऑफ द मनी। ठीक है। तो मैं उसके कॉल एंड पुट बेचकर वेट करूंगा कि मुझे डीके जैसे जैसे होते जाएगा, टाइम डीके जैसे होगा, थीटा डीके जैसे होगा, वैसे प्रॉफिट मिलेगा। इसमें मैं जो भी करता हूँ तो मुझे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। या मैं सपोर्ट, जैसे मैंने आपको ओआई पे दिखाया कि सपोर्ट कहाँ पे आपका होगा और रेजिस्टेंस कहाँ होगा, तो मैं वो स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट बेच सकता हूँ। ये एक आइडियल सिनेरियो है। अगर मैं और ज़्यादा कंजर्वेटिव हूँ तो मैं सपोर्ट के नीचे के स्ट्राइक प्राइस का पुट बेचूंगा। अगर मुझे और कंजर्वेटिव बनना है तो रेजिस्टेंस के ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस का कॉल सेल करूंगा। मुझे इसमें प्रीमियम ज़्यादा नहीं मिलेगा बट जो भी मिलेगा वो मुझे शांति से मिलेगा, मतलब मेरा रिस्क कम रहेगा। ठीक है। ये लॉन्ग टर्म्स के स्ट्रैंगल्स डालना चाहिए और लास्ट 2 वीक्स में डालना चाहिए। लास्ट 2 वीक में इसलिए बोला है, पर्टिकुलरली लास्ट 2 वीक का यहाँ पर मेंशन किया है क्योंकि उसमें जो टाइम डिके होता है वो फास्ट होता है कंपेयर टू, जबकि जो एक्सपायरी जहाँ स्टार्ट होती है उससे बेटर है कि ये मंथली एक्सपायरी को कंसिडर करके डाला गया है। ठीक है। तो लास्ट 2 वीक में फास्ट टाइम डिके होता है तो जो सेलर होता है उसको जल्दी प्रॉफिट मिलने के चांसेस होते हैं। बट दिस वन इज ऑल्सो रिस्की स्ट्रेटेजी क्योंकि इसमें सिर्फ सेल ही हुआ है, वन साइडेड ही काम हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट कैलेंडर स्पीड से पहले, अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने शॉर्ट स्ट्रैडल और शॉर्ट स्ट्रैंगल दिखाया, इसमें लॉन्ग स्ट्रैडल और लॉन्ग स्ट्रैंगल भी होता है। लॉन्ग में मतलब क्या होता है, अब मैं शॉर्ट में मैंने क्या किया, दोनों सेल कर दिए कॉल और पुट। मैं लॉन्ग में क्या करूंगा, दोनों बाय कर लूंगा कॉल और पुट एटीएम के। जैसे अभी 550 चल रहा है, ठीक है, तो मैं 550 का कॉल भी बाय कर लूंगा, पुट भी बाय कर लूंगा। अब मेरा यहाँ पर सिनारियो क्या बनता है, मैंने यहाँ पे प्रीमियम दिया है, एक का कुछ 93 चल रहा है, दूसरा 76 चल रहा है। सो कंसिडरिंग कि मैंने यहाँ पे 170 रुपए का प्रीमियम दिया है तो मुझे प्रॉफिट कब होगा, 170 पॉइंट्स ब्रेक इवन बन जाएगा। 170 पॉइंट्स के बाहर ऊपर या नीचे मार्केट जाता है तो मेरा प्रॉफिट बनेगा। ठीक है। अब ये कब आपको डालना है, लॉन्ग कब करना है स्ट्रैडल को, अगर मेरे एक्सपायरी के बीच में, अब थर्सडे एक्सपायरी है, थर्सडे के बीच में अगर कोई बड़ा इवेंट है जहां मार्केट वोलाटाइल हो सकता है इन एनी डायरेक्शन, तो मुझे इधर डायरेक्शन में मार्केट कहीं पर भी 170 पॉइंट्स के अबव या बाहर गया तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो वो टाइम पे मैं लॉन्ग करूंगा स्ट्रैडल को, कॉल पुट दोनों बाय कर लूंगा। बीच में एक क्वेरीज थी ना कि न्यूमरिक्स कैसे वर्क करता है अलजेब्रा, तो मुझे ये जो नंबर के कैलकुलेशंस हैं, 170 पॉइंट का मेरा ब्रेक इवन हुआ, मैंने कॉल और पुट दोनों 170 रुपये का प्रीमियम पे किया, 170 रुपये का प्रीमियम लिया, सेल कर रहा हूँ तो ये न्यूमरिक्स अगर आप सीखते हो, मतलब ये न्यूमरिक्स पे अगर आप बराबर से वर्क करते हो, ठीक है, आपके ब्रेक इवंस आते हैं। उसके बाद में जब आपको जब भी मार्केट आपके स्ट्रैटेजी के बाहर जाता है और लॉस चल होता है तो वहाँ पर आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो कितने प्रीमियम का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ये सब के लिए अलजेब्रा जरूरी था, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैथमेटिक्स है ये सब।
ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि 170 पॉइंट्स के बाहर अगर मार्केट जाता है बियॉन्ड, अगर मेरा टेक्निकल एनालिसिस बोलता है कि मार्केट में एक बड़ा इवेंट आने वाला है 300-400 पॉइंट्स का, एक्सपायरी के पहले मूव आ सकता है, तो मैं स्ट्रैडल लॉन्ग स्ट्रैडल का स्ट्रेटेजी डाल दूंगा और शांति से वेट करूंगा। अगर इसमें मार्केट कोई भी एक साइड ऊपर या नीचे गया तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, मैं लॉन्ग करता हूँ तो। यहाँ पे सिर्फ स्ट्रैडल दी शॉर्ट का दिया है, ठीक है। सो यहाँ तक ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, लॉन्ग स्ट्रैंगल, ये शॉर्ट स्ट्रैंगल है, वैसे ही मैं लॉन्ग स्ट्रैंगल कर सकता हूँ। मतलब अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट में एक अच्छा खासा मूव आएगा, कौन से साइड में आएगा ये मुझे नहीं पता है, फिर भी अगर मुझे स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करना है तो मैं लॉन्ग स्ट्रैंगल डालूंगा। ये स्ट्रेटेजी बहुत कम यूज होती है। ये स्ट्रेटेजीज जब बहुत बड़ा इवेंट आने वाला होता है वही टाइम पे यूज होती है, क्योंकि टाइम डीके की वजह से यहाँ पर बायर को, ऑप्शन बायर को लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। सेम सपोर्ट और रेजिस्टेंस जहाँ पर है वहाँ के मैं ऑप्शंस बाय कर लूँगा, ठीक है। जैसे ही वो ब्रेक होगा मुझे प्रॉफिट, कोई भी एक साइड में ब्रेक इवन आता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं लॉन्ग स्ट्रैंगल, ठीक है। ये सारी स्ट्रेटेजीज जो मैं दिखा रहा हूँ इसमें 70 to 80%, 75% ऑफ द टाइम एडजस्टमेंट करना ही होता है। मार्केट आपके स्ट्रेटेजीज के बाहर जाएगा और उसमें आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। एडजस्टमेंट इज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस ऑप्शन एनालिसिस का, ठीक है। कैलेंडर स्प्रेड, ठीक है, पुट और कॉल। कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है, अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं क्या करूँगा, ये करंट मंथ का पुट सेल कर दूंगा, नेक्स्ट मंथ का पुट मैं बाय कर लूँगा। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे करंट मार्केट का जो पुट है उसमें प्रॉफिट होगा, और जो नेक्स्ट मंथ का पुट है उसमें मुझे लॉस होगा। बट मेरा ये मंथ का पुट का प्राइस जो है वो ज़्यादा होगा, तो मुझे सेलिंग में प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और जो मेरा बाइंग है उसमें मुझे प्रॉफिट, उसमें मुझे लॉस होगा बट वो कम होगा, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो मेरा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। हेजिंग में ऐसे ही होता है, एक साइड आपको प्रॉफिट होती है और दूसरे साइड आपको लॉस होता है। आपको ऐसे स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करना है कि जो प्रॉफिट वाला साइड है उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए, और जो लॉस वाला साइड है उसमें लॉस कम होना चाहिए, ठीक है। जो दोनों का डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। मैं आपको आगे के स्लाइड्स में वो दिखाता हूँ। कॉल कैलेंडर स्प्रेड में बेरी स्ट्रेटेजी चाहिए, ये मंथ का कॉल सेल किया, नेक्स्ट मंथ का कॉल बाय करते हैं, ठीक है। अगर मार्केट नीचे जाता है तो मेरा जो प्रीमियम है वो कम कम होते जाएगा ये मंथ का कॉल का, और वो जीरो तक जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, और मुझे पूरा का पूरा प्रीमियम खाने मिलेगा। जबकि मेरा जो बाइंग है उसका प्रीमियम डीके होगा, लेकिन वो पूरा डीके नहीं होगा क्योंकि वो नेक्स्ट मंथ का कॉल बाय है, ठीक है। तो डीके स्लोली होगा, लेकिन ये मंथ का अगर मार्केट जैसा मैंने एनालिसिस किया उस तरह से नीचे गया तो मुझे पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है बटरफ्लाई, ठीक है। अब ये स्ट्रेटेजी जो है ये बहुत लिमिटेड रिस्क वाली है। सी ये है वो स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये वीक का, करंट वीक का ही मैंने एक बटरफ्लाई डिप्लॉय किया है। बटरफ्लाई में मैंने क्या किया, एटीएम के मैंने दोनों कॉल, दो लॉट कॉल सेल कर दिए, ठीक है। जितना प्रीमियम मिला उतने प्रीमियम का, जो अगर सपोज मुझे यहाँ पे 200 रुपये मिला है तो 200 पॉइंट्स नीचे का मैंने कॉल बाय कर लिया, 200 पॉइंट ऊपर का मैंने कॉल बाय कर लिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मैं डेल्टा ऑलमोस्ट जीरो करने का ट्राई कर रहा हूँ, बट थोड़ा बहुत डेल्टा मुझे देना पड़ेगा, वही डेल्टा मतलब ये मेरा लॉस है। अब मुझे यहाँ पे 1:7 का रेशियो मिल रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो मुझे अगर मैक्सिमम लॉस होगा तो 3600 का लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो 6300 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। सो अगर मार्केट ये जो मेरे ब्रेक इवन से इसके बाहर जाता है तो मैं एडजस्टमेंट करूंगा, ठीक है। और मेरा ये जो लॉस परसेंटेज है ये मैं इसको रिड्यूस करते जाऊंगा, ठीक है, मैं इसको रिड्यूस कर लूंगा, ठीक है। तो ये हो गया बटरफ्लाई, ठीक है। मतलब दोनों साइड मार्केट कहीं पर भी गया तो मेरा लॉस प्रोटेक्ट हो गया। और मुझे अगर ये रीजन में, मतलब ये ब्रेक इवन 423 से 677
अगर 8 जून को इसके बीच में अगर कहीं पर भी मार्केट क्लोज होता है तो मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है, दिस इज द बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब ये क्या लिखा है यहाँ पे, इम्यून टू ब्लैक स्वैन इवेंट। ब्लैक स्वैन इवेंट मतलब क्या, अगर कोई बहुत ही बड़ा न्यूज़ आ गया या कहीं कुछ एक्ट ऑफ गॉड हो गया, वॉर हो गया, कुछ हो गया और मार्केट 10% 20% सीधा फ्लैट नीचे ओपन हो गया, तो इसमें भी मुझे जो लॉस है वो होगा। जितना मेरा पहले ही मुझे पता है कि मुझे 3000 का लॉस होगा, तो उससे ज़्यादा मुझे लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हम लोग स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करते हैं वहाँ पे हम लोग हमारा रिस्क डिफाइन करते हैं। जो हमने पहले स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल में देखा, वहाँ पे हम लोग अगर सेल करते हैं तो हमारा रिस्क डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो अगर हमको रिस्क डिफाइन करना है तो हमको इस तरह से कोई स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करना है जहाँ पे हम लोग हमारी रिस्क जो है वो डिफाइन कर सके। यही मैंने बोला था आपको कि अगर हम जितने ऑप्शंस बाय करते हैं उतना ही सेल होता है, तो डेल्टा हमको जीरो की तरफ लेके जाना होता है, तो हमको उसमें प्रॉफिट हो सकता है। अब हम इसको एडजस्टमेंट, ये कैन प्ले विद द थर्ड लेग बाय, मतलब ये एडजस्टमेंट का पार्ट है, वो डिपेंड्स क्या सिनारियो बनता है, हमको सेल करना है या बाय करना है वो डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आयन कॉन्डोर। ठीक है, ये भी लो रिस्क स्ट्रेटेजी है, इसमें भी हमको हमारा जो भी रिस्क है प्री डिफाइंड होता है, प्रॉफिट भी प्री डिफाइंड होता है। ठीक है, इसमें रिवॉर्ड भी कम मिलता है लेकिन रिस्क भी कम होती है। तो हम लोग ओटीएम के कॉल पुट सेल करते हैं और उससे भी बाहर जाके फार ओटीएम के कॉल पुट बाय करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको प्रॉफिट कम मिलेगा लेकिन रिस्क भी हमारा बहुत मिनिमाइज रहेगा, बहुत कम रिस्क रहेगा। ठीक है, आयन फ्लाई, बटरफ्लाई के जैसा ये सेम स्ट्रेटेजी है। आयन फ्लाई इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, आयन फ्लाई और बटरफ्लाई स्ट्रेटेजीज होती है। इसको सबसे ज़्यादा यूज होते हैं ये दो स्ट्रेटेजीज का। यहाँ पर क्या करते हैं कि एटीएम के कॉल और पुट दोनों सेल करते हैं। हमने बटरफ्लाई में देखा था कि या तो कॉल या तो पुट, आप कुछ भी एक सेल कर सकते हो। ठीक है, देन ओटीएम का एक स्ट्रैंगल, स्ट्रैंगल मतलब अब यहाँ पे उन्होंने स्ट्रैंगल बोला है कि एटीएम के कॉल पुट सेल करो और ओटीएम के कॉल पुट बाय कर लो। जो अब इसमें कौन से बाय करना है, इसके लिए क्या फॉर्मूला है, जितना मैं सेल का प्रीमियम मुझे मिला, अगर मुझे एटीएम का कॉल और पुट सेल करके 200 पॉइंट मिलते हैं, तो मैं 200 पॉइंट दूर का पुट बाय करूंगा, 200 पॉइंट दूर का कॉल बाय कर लूंगा। ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट वे कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे काम करना है फाइंड आउट करने के लिए। इसमें भी सेम लिमिटेड रिस्क रहती है और ये एक्सपायरी के पहले काम करने के लिए बेटर स्ट्रेटेजी है। डिपेंड्स करता है कि प्रीमियम कैसा है और वो सब पे। ठीक है, तो दिस इज द आयन फ्लाई। पोर्टफोलियो हेजिंग, ये मैंने ऑलमोस्ट कवर किया ही है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में ही दिखाया था कि ऑप्शंस ये हेजिंग के लिए होता है। ठीक है, अगर मेरे लॉन्ग टर्म का मेरा पोर्टफोलियो है, ठीक है, और मुझे रिस्क लगता है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें भी एक स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका 50 लाख का पोर्टफोलियो है और आपके पास इन्फोसिस, रिलायंस जैसे स्टॉक्स हैं और आज रिलायंस का प्राइस चल रहा है 2500 रुपया, मैं कंसिडर करता हूँ। ठीक है, तो 10% अबव का आप कॉल सेल कर दो, क्योंकि एक मंथ में 10% रिटर्न अगर देता है रिलायंस, तो वो बहुत बड़ा रिटर्न है। इतना रिटर्न आना बहुत डिफिकल्ट होता है, इन्फोसिस 10% रिटर्न देना डिफिकल्ट होता है, टीसीएस। तो ये आपको है ना, आपके जैसे प्रॉपर्टी का रेंट आपको मिलता है, तो वैसे ये आपका पोर्टफोलियो का रेंट आपको देगा। मतलब जो भी आपको मिलेगा थोड़ा बहुत उसका सेल करके 10% ऊपर का, वो आपका रेंट लाइक हो गया, जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो हो गया है उसका। ठीक है, देर आर मेनी मोर स्ट्रेटेजीज रहती है हेजिंग की। तो आपको मैंने ये एक और स्ट्रेटेजी दिखाई, जो बहुत बड़े जिनके पोर्टफोलियोज है वो लोग ये स्ट्रेटेजी करते हैं। क्योंकि अगर मेरा रिलायंस 250 पॉइंट 10% मतलब 250 रुपये ऊपर गया, तो मुझे उसके बाद में प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन तब तक तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, और जो मैंने ऑप्शन सेल किए हैं ऊपर के, ठीक है, तो जो भी 2 5 रुपये 10 रुपये जो भी होगा, वो मुझे उसका रेंटल इनकम हो गया, वो मुझे उसमें पैसे 2 या 5 पॉइंट जो भी है वो मुझे हर महीने मिलते रहेगा। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी कैसे वर्क होती है, इसको पे ऑफ चार्ट बोलते हैं। ठीक है, ये पे ऑफ चार्ट आपको दिखाता है कि आपका ब्रेक इवन कहाँ से, मतलब आपको लॉस कहाँ से स्टार्ट होगा, उसके बीच में आपको प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये जो मैंने ये जो पे ऑफ चार्ट देखा है, ये ऑप्स्ट्रा पे देखा है। ऑप्स्ट्रा करके एक साइट है, बहुत से लोगों को पता होगी, वहाँ पे आप डाल सकते हो।
स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर सकते हो। वो आपको प्रोबेबिलिटी दिखाता है कि कितना परसेंट चांसेस है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट परसेंटेज, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, मैक्सिमम लॉस कितना होगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, 1:1.77, इट्स गुड वन। ठीक है, ब्रेक इवन कहाँ तक आपको प्रॉफिट हो सकता है, किसके बाद में आपको लॉस होगा, आपको मार्जिन कितना लगेगा। ठीक है, तो मैं 38,000 में ये एक स्ट्रेटेजीज डिप्लॉय कर सकता हूँ, 40,000 आप पकड़ के चलो। ठीक है, अब इसमें डेल्टा, थीटा, गामा इस सब का वैल्यू आता है। जो अगर आप डेल्टा पे अगर आप ग्रीक्स पे अच्छे से वर्क कर सकते हो तो ग्रीक्स के हिसाब से भी आप स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर सकते हो, तो वो मैं यहाँ एडजस्ट कर सकता हूँ और मेरी स्ट्रेटेजी में डिप्लॉय कर सकता हूँ। मुझे इसमें एडजस्टमेंट के लिए भी काफ़ी सारा स्कोप मिलता है, और डेल्टा या थीटा कितना एडजस्ट करना है और कौन से प्रीमियम का डेल्टा है, कौन से स्ट्राइक प्राइस का है, उसे बाय करना है या सेल करना है, जिसे ग्रीक्स अच्छे से पता है वो एडजस्ट करके एडजस्टमेंट इसमें स्ट्रेटेजी में आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें और बहुत सी कुछ स्ट्रेटेजीज है। ठीक है, सो हर स्ट्रेटेजीज कवर करना इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, फिर भी मैंने ट्राई किया है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेटेजीज कवर कर सकूँ मैंने किया है। इसमें एक स्प्रेड कर कर भी स्ट्रेटेजी होता है। स्प्रेड स्ट्रेटेजी मतलब क्या, अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट, मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, अगर मुझे लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है, 200 पॉइंट नीचे आएगा निफ्टी, तो मैं क्या करूँगा, एटीएम का पुट बाय कर लूँगा और 200 पॉइंट ओटीएम का पुट सेल कर दूंगा। मतलब 550 का पुट बाय करूंगा और 350 का पुट सेल कर दूंगा। ठीक है, इसमें अगर मार्केट मेरे एनालिसिस के हिसाब से नीचे आया तो मुझे जो मैं पुट बाय कर रहा हूँ उसमें मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, और जो पुट सेल कर रहा हूँ, अगर मैंने पुट सेल 50 रुपये में किया तो 350 प्लस 50 पॉइंट्स का मुझे कुशन मिल गया, तो 300 के नीचे मुझे पुट सेल में लॉस होगा, लेकिन मुझे कंटिन्यूसली यहाँ पे प्रॉफिट होगा। सो प्रॉफिट साइड ज़्यादा रहेगी, लॉस साइड कम रहेगा, जो भी डिफरेंस रहेगा वो मेरा प्रॉफिट होगा, उसे बोलते हैं स्प्रेड। लॉन्ग स्प्रेड, शॉर्ट स्प्रेड, कोई डेबिट स्प्रेड, क्रेडिट स्प्रेड बोलता है। अगर मैं बेरिश सिनारियो से स्प्रेड डिप्लॉय करता हूँ तो उसे शॉर्ट स्प्रेड बोलते हैं। अगर मेरा सिनारियो बुलिश है और मैं बुलिश सिनारियो से स्प्रेड डालता हूँ तो उसे बोलते हैं बुलिश स्प्रेड। ठीक है, तो ये एक स्प्रेड भी है जो काफ़ी पब्लिक, जिसे अगर आपको ट्रेंड समझ में आता है बुलिश है बेरिश है तो आप उसको स्प्रेड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। स्प्रेड क्यों डालना चाहिए, अगर आप बोलते हो कि अगर मुझे ट्रेंड समझ में आ गया तो मैं सिर्फ ऑप्शंस बाय करके पर्टिकुलर साइड का काम कर सकता हूँ, बट हमारा एनालिसिस बोल रहा है कि मार्केट नीचे आया, बट अगर मार्केट नीचे नहीं आया और हमने सिर्फ ऑप्शन बाय किया तो हमको वो ऑप्शंस का लॉस मिनिमाइज करने के लिए एक कॉन्ट्रा ट्रेड या हेज करना पड़ता है, उसका कॉन्ट्रा ट्रेड लेके। ठीक है, इसलिए मुझे पुट सेल भी साथ में करना है। अगर मैं पुट बाय कर रहा हूँ तो वहाँ पे मेरा लॉस मिनिमाइज होता है, एंड ऑप्शन इज ऑल अबाउट द लॉस, आप कितना मिनिमाइज कर पा रहे हो। जितना कम से कम आप ऑप्शंस में लॉस होने दोगे उतना प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आप इसमें प्रॉफिट बनाओगे। दिस इज ऑल अबाउट द ऑप्शंस। ठीक है, दिस इज, तो मेरे साइड से ऑप्शंस का F&O का सेशन कंप्लीट हुआ। मैंने करेंसी का भी आपको बताया। ठीक है, तो दिस ऑल अबाउट आवर सर्विसेज। हम लोग पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग भी अगर क्लाइंट्स के करते हैं, और मेनली मैं क्लासेस भी लेता हूँ टेक्निकल एनालिसिस के, ऑनलाइन ऑफलाइन हमारा बैचेस है। तो दिस ऑल आर आवर सर्विसेज। किसी को कुछ क्वेश्चंस क्वेरीज होगी तो आप प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। अगर आपको यहाँ पर नहीं है, बाद में भी कभी कोई क्वेरीज आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा पीपीटी दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. It's visible. Yes, sir. दिस इज माय कांटेक्ट नंबर, आप मुझे बाद में भी कभी कोई क्वेरीज है तो पूछ सकते हो। तो Yeah, if anybody has any questions, kindly ask them, or you can even raise your hands. Feel free, as this is an interactive session. You can directly talk with sir about any of your doubts. Are there any doubts?
एक्चुअली F&O ये है ना, ये 2 घंटे में कवर करना इट्स वेरी डिफिकल्ट. Yes, sir. It's actually a very vast topic and a huge domain, na? So, but the way you told us about all the basics, it did cover up a lot of things. मैं ट्राई कर रहा हूँ, मतलब किया मैंने कि पूरा जो भी टॉपिक्स है वो कवर कर सकूँ, बट मैं उसको बहुत बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि टाइम लिमिटेशन है. Yes, yes, because of the time constraint. But आपने जो basics ये बताए, pretty good. Like we now have a good idea about futures and options and all the strategies that you mentioned, which was really nice. Thank you, sir, for all your valuable insights on this topic. थैंक यू. किसी को Yes, sir. क्वेश्चंस नहीं है तो हम लोग क्लोज कर सकते हैं. Yes, I don't think there are any doubts. There's nobody putting any doubts forward. Along with the doubts, if anybody also has any feedbacks or reviews about this series, the whole 5 days, you can feel free to raise your hands and share your views with us. Okay, sir. I now request Master Madhvik Shah, the Secretary of Pune Vikasa, to propose the vote of thanks. Amazing session, Bharat sir. I would like to thank Mr. Bharat Lade sir for such a wonderful session on basics of derivatives, that is options and future. Also, I would like to express gratitude to all 3 faculties and stock market experts for this series, Bharat Lade sir, Shubham Abar sir, and Vaibhav Inani sir, for sharing their and increasing our knowledge. This 5-day series has definitely benefited the students in order to invest their stipend as a pro. Also, active participation of the students throughout the series of 5 days was very commendable. I am thankful to Ahmednagar, Akola, Dhule, Goa, Jalgaon, Kolhapur, Latur, Nanded, Pimpri Chinchwad, Sangli, Satara, Solapur, and Surat branches of Vikasa for their joint participation to make this event a successful one. Here I would also like to appreciate and thank all the MOCs for the series for their efforts and preparation to run the event smoothly. Efforts taken by Kinjal, Ketki, Sakshi, Yash, and Shravani are really appreciable. Thank you all the committee members of Pune branch of Vikasa for planning, execution, and making this event successful. Thank you, Sairam, for your great coordination, Sneha and Omkar for their efforts to make this event grand. I finally thank Shwetali ma'am and the technical support staff of Pune branch of ICI for managing at the back end and coordination of the event. आज के लिए यही रुकते हैं, मिलते हैं ऐसे ही इसी जोश में अगले इवेंट में. थैंकिंग यू, माधविक राहुल शाह, सेक्रेटरी पुणे विकासा. Thank you, Madhvik. As you mentioned, I would also like to take this opportunity to thank our wonderful audience for their active participation in all the sessions. Their enthusiasm towards learning new things is really inspiring. A huge thanks to again our very own team of Pune Vikasa for organizing this, and all the volunteers and MOCs for their efforts. A special mention to Shwetali ma'am for the technical assistance. Last but not the least, I had used a cricket reference in the beginning. So related to cricket, we all know that who the god of cricket is, Sachin Tendulkar. So similarly, a special mention to the godlike figure of Pune Vikasa, none other than CA Sachin Minyar sir. We are grateful for you, sir. Thank you for making all of this happen. Sunsets are proof that endings can be beautiful. And with this, my dear friends, we have finally reached the end of this session and of this amazing series, Investment Ki Pathshala. But this is just the beginning. Pune Vikasa has planned many more seminars, sessions, and conferences for you. So stay tuned and keep participating. For more information, you can also visit the Instagram page of Pune Vikasa. This is your host, Shravani Bendre, signing off. Have a great day. Be you, be happy, because that, my dear friends, is all that matters. Jai Hind, Jai ICI.